सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछना पसंद करूंगा सो दैट हम अलाइन रहे, क्या हम सीख रहे हैं। बताइए, मुझे कितना साल का एक्सपीरियंस है? 8.5। ओके। क्या मुझे टैबलो आता है? आता है। ओके ओके। हाउ पावर बीआई इज हेल्पिंग मी टुवर्ड्स डेटा साइंस, मतलब ऐसा क्या करता है पावर बीआई, या क्या कर सकते हैं पावर बीआई में जो हमें डेटा साइंस में हेल्प करता है? सो डेटा जो अपना पावर बीआई है, इसमें जब हम कोड प्रेप करके इसका समराइजेशन बनाते हैं, देन वी कैन share it with the data scientist people to do some predictive modeling or any analysis they want, or any forecasting, whatever they want. If you see the core of Power BI, it's report visualization. And when we see reports, right, it is showing you a summary. When I say summary, it also show you the pattern hidden in the data. Being a data analyst, मैं tons of data को handle करता हूँ, not tons, means in millions and billions of records को देखता हूँ. But just by seeing the data, I cannot say something, cannot withdraw some insights, correct? To know something, to find some insights, right? मुझे एक पैटर्न चाहिए. अगर मैं कोई पैटर्न देख सकता हूँ तो I can say or provide some insights. तो Power BI क्या कर रहा है यहाँ पे? It is giving you a pattern by way of graphs, charts, जिससे आप easily, आप हो या कोई और हो, right, वो insights निकाल सकता है और उसके बेसिस पे कोई बिजनेस डिसीजन लिया जा सकता है. इसलिए आप देखेंगे डेटा साइंस में जो एंड रिजल्ट होता है, दैट इज मोस्टली अ रिपोर्ट. ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक डिसीजन मेकिंग होती है. व्हाट इज द यूज ऑफ दीज टू आइटम्स? जस्ट यूज whatever developer has to create in desktop mode. So after that they can publish their report and their work in the service. So from service user can access all those reports that are created by a developer. So basically both are the things where we can share our reports. So Power BI service is just to share your content. Okay, so both, okay, मैं बताता हूँ. Both these are the platform जिसपे हम अपना कंटेंट होस्ट करते हैं, मतलब पब्लिश करते हैं, फिर वो होस्ट करता है उसको, एंड यूजर्स एंड यूजर्स आई मीन उस प्लेटफॉर्म पे आके अपना कंटेंट कंज्यूम करते हैं. कंटेंट शेयरिंग भी है, होस्टिंग भी है, कंजम्पशन भी एक ही प्लेटफॉर्म से हो जाता है. सो दोनों ही टूल इसमें हेल्प करते हैं. आप दोनों को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हो. यू कैन यूज one versus the other. What is the use of Power Virtual Agent? So Power Virtual Agent is just like, it was like a chat box. So let's say, for example, if you have seen in any of the website, right, if you want to go for a car insurance, so it asks you, how can I help you? So you just put your query and they guys give a kind of a set answer. Power Apps का क्या रोल है in Power Platform? Power Apps, right? Yes. So Power Apps, it is used like to consolidate all the like dashboards or reports, so that the end user, they can see it in a much more clean manner, the reports and dashboards which we want to share with them. आप टर्म मिसप्लेस कर दिया. मैंने Power Apps पूछा है. Power Apps. हाँ, तो Power Apps, not Power BI Apps. Power BI app and Power Apps ये दोनों ही अलग है. एक एप्लीकेशन है तो एक एरिया है, अब प्लेटफॉर्म है. नहीं, याद नहीं आ रहा? नहीं. We can access our reports in tab. नहीं, एक मिनट. No. अभी पावर एप्स पूछ रहा हूँ, नॉट पावर BI ऐप. एक मिनट रुकिए, आप कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग. Answer this. So Power Apps is something where you can give the whole information and store the information. So store the information means you can store the information by the help of an URL. ऐसा है जैसा आपने एक एग्जांपल लेके बताया था कि आप अगर एम्प्लॉय का अटेंडेंस डालना है तो आप कैसे डाल सकते हो. So that is little different than Power BI app. ठीक है, ये तीन टर्म्स हैं अगर आप देखें. This is an application, sorry, a software. This is an platform, Power BI. This is mobile version
पावर बीआई। अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं स्टिल, हम ब्राउजर पे जाते हैं, यहाँ पे जाता हूँ मेक डॉट पावर एप्स। अब देख रहे हो टर्म, ये यूआरएल देखो क्या लिखा हुआ है, मेक, इसको उठा लेते हैं जैसे, ये देखिए दिस इज पावर एप्स। अगर अभी भी नहीं रिलेट कर पा रहे, पावर प्लेटफॉर्म, ये देखिए जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, अंडर पावर प्लेटफॉर्म अम्ब्रेला वी हैव 4 applications. One is Power BI, we are aware of. Second is Power Apps. Third, Power Automate. Last, Power Virtual Agent. तो मैं इसके बारे में पूछ रहा हूँ। तो ये तो आई थिंक मोबाइल एप्लीकेशन यूज को बनाने के लिए ही तो यूज करते हैं पावर एप्स। लाइक मुझे है ना, रिपोर्ट की विजुअलाइजेशन को भी मैं इसमें ऐड कर सकती हूँ, बट वो मोबाइल मुझे लुक देगा, मोबाइल व्यू देगा। एप्लीकेशन मुझे पूछना है कि वो क्या, वो जो पावर मोबाइल ऐप है, इन दैट केस जैसे हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल में, इज इट दैट? यस, मोबाइल ऐप। ओके, तो मैं दोबारा बताता हूँ। जब हम पावर बीआई इस पे चले जाते हैं, पहले इसकी बात करते हैं, ठीक है। दिस पावर एप्स, this particular tool helps you to create any mobile app, not any business mobile app. मैं business mobile app क्यों बोल रहा हूँ? Because अब आप ये भी सोचोगे कि it can create games, correct? पर ये वैसा नहीं कर सकता। आप अगर Amazon जैसा कोई ऐप एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहें तो वो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उतना स्केल नहीं है इसका। ये एक ऑर्गेनाइजेशन की छोटी बिजनेस नीड्स को पूरा करता है, जो एक एप्लीकेशन वेब पोर्टल से पूरी होती हो, ठीक है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लीव मैनेजमेंट का एक छोटा सा ऑप्शन बताया था, वो बहुत कुछ नहीं करता, वो बहुत लिमिटेड एक्टिविटी करता है। सो पावर एप्स की मदद से यू कैन क्रिएट पावर बीआई, माय बैड, यू कैन क्रिएट मोबाइल ऐप, यू कैन क्रिएट पोर्टल्स, यू कैन क्रिएट पोर्टल्स ऑफ वेबसाइट, इस तरह से। या आप कह सकते हो कि आप टैबलेट के भी ऐप बना सकते हो इसे। पर वो जितने भी ऐप या पोर्टल ये बना रहा है, दैट इज ओनली इंटेंडेड फॉर बिजनेस इंटरनल यूज, इंटरनल। और कुछ एक्सटेंड पे अगर आप पोर्टल भी ले लेते हैं, देन इट कैन बी यूज्ड एज अ वेबसाइट फॉर एक्सटर्नल यूज। उसके लिए अलग लाइसेंस कॉस्ट वगैरह आ जाती है। इज इट क्लियर? दिस पावर ऐप क्लियर है? ओके। सो नेक्स्ट वी हैव पावर बीआई ऐप। सो पावर बीआई ऐप ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है कंटेंट को होस्ट करने के लिए फॉर एंड यूजर्स। इस पे हम चले जाते हैं दोबारा। ये ऐप देख रहे हो आप, इसको पावर बीआई ऐप बोलते हैं, इन सभी को ऐप्स बोलते हैं। अभी भी नहीं लग रहा हो, अगर ऐप मतलब ऐप जैसी फीलिंग ना आ रही हो, यहाँ गेट ऐप्स पे जाओ, अब लगेगा थोड़ा बहुत फीलिंग। ये देखिए आगे ना ऐप स्टोर जैसा लग रहा है। प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, हाँ, तो बिल्कुल ऐप जैसा ही है। आप ये बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐप्स हैं, इसमें से कुछ माइक्रोसॉफ्ट के भी ऐप्स हैं, काफी थर्ड पार्टी के भी ऐप्स होंगे। जैसे ये वाला एक YouTube चैनल है, इसने भी देखो दो तो बनाई दिए, और 3-4 हैं यूज के, ठीक है। दीज आर एप्स। आपने बताया था कि पावर बीआई एप्स को हम इसलिए यूज करते हैं, बेसिकली इट इज एन इंटरफेस टू see your report so that user should not get any hassle while interacting with them, right? Correct. So अगर मैं बात करूं कि अब ये सारी एप्स हैं, पावर बीआई एप्स, तो ये तो एक ऐप हो गई, जो एक सॉफ्टवेयर हो गया, एक बिजनेस सॉफ्टवेयर हो गया, ये तो एक है ना। तो मतलब मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर वो तो इंटरेक्टिविटी के लिए था, और ये एक अलग से नया ऐप है। दो चीजें एक जगह पर कैसे? नहीं, ओके। अल्टीमेटली दोनों का पर्पस क्या है? यूजर्स को सिर्फ एक सिंगल प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाना, ताकि वो डेटा के साथ अपना प्ले कर सके। प्ले एज इन ग्राफ चार्ट्स, एक मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग पर्पस जो उसका होता है, उसके लिए ऐप रोल प्ले करता है, ठीक है। ओके, ठीक है। बट इस ऐप को बनाने के लिए जो बैकग्राउंड वर्क है, वो तो स्टिल वैसा का वैसा ही है। आपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप करना है, आपको वर्क स्पेस में जाके होस्ट करना है, फिर ऐप बनानी है, ये सारा काम इसमें तो है ही। अब यहाँ पे ये एज एन एड ऑन जो आप देख रहे हो, अब जब आप खुद बनाते हो ऐप, तो आप किसके लिए बनाते हो? आपके इंटरनल कस्टमर के लिए बनाते हो, राइट? पर अगर मैं बोलूं कि आप ये काम अपने एक्सटर्नल कस्टमर के लिए भी कर सकते हो, तो चलो कर तो लिया, पर दोगे कैसे उसको?
जैसे फॉर एग्जांपल आप डेटा एनालिस्ट है, राइट? आपको पता है कि ये जितने भी रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल YouTube लेते हैं, जैसे ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। आप डेटा एनालिस्ट है, ठीक है, आपको ऐप बनाना आता है, ये बिकते भी हैं वैसे, ठीक है, ठीक है। तो और हम ये भी जानते हैं कि आज के टाइम पे यूट्यूबर्स बहुत हैं, लाइक मिलियंस इवन बिलियंस में होंगे आई बिलीव, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी जो बहुत अच्छा अर्न करते हैं, दे नीड टू मॉनिटर देयर यूट्यूब चैनल्स, राइट? वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए उनको डैशबोर्ड चाहिए। तो क्या उन्हें बनाना आता है वो डैशबोर्ड? नहीं आता, राइट? सो यस, यूट्यूब अवेलेबल कराता है एनालिटिक्स, बट पर इनसाइट्स निकालने की बात आती है तो कहाँ जाएंगे? पावर BI नहीं पावर जा तो सकते, मैं कह रहा हूँ कहाँ जाएंगे, लाइक एज इन खुद बनाएंगे या किसी को बोलेंगे बनाने के लिए? यस, है ना? तो अब फिर वही वाला बात आ जाती है कि अगर एक्सेल पे बनाया तो फिर हर बार डेटा अवेलेबल कराओ उसको। तो एक फुल्ली ऑटोमेटेड स्ट्रक्चर देना रिपोर्टिंग सॉल्यूशन का, एक आर्किटेक्चर प्रोवाइड करना। सो यहाँ पे इस तरह का फंक्शनैलिटी माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि आप अपना एक कंटेंट बनाओ, पावर BI ऐप बनाओ, आप चाहो तो बेच सकते हो, ये हल्के में मत लीजिएगा, $500 में भी बिक जाता है। अगर इसके चैनल पे आप जाओगे तो आप देख सकते हो, इसने बहुत अच्छी प्राइस रखी हुई है। आई बिलीव यहाँ पे शायद फ्री होगा या पेड भी हो सकता है, यहाँ पे फ्री रखा है इसने, YouTube एनालिटिक्स रिपोर्ट। हाँ, सो ये रिपोर्ट इसने बनाई है पूरी पावर BI। अब ये फंक्शनैलिटी के लिए रहेगा यहाँ पे YouTube। अच्छा सर, अरे सीधा सा है ना, आपका एक YouTube चैनल है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए ना कि उसका पीछे का स्टैट्स क्या है, कुछ एनालाइज करना आपको नहीं पता। समरी और वो सब है, रिपोर्ट यूसेज समरी टाइप। हाँ, मैं सिंपली कहूँ, आप YouTube का चैनल बनाया है, आपने बनाया हुआ है, आप वीडियोस भी डाल दो रेगुलर बेसिस पे, पर आप ये जानना चाहते हो कि आपका जो YouTube का ओवरऑल अगर आप देखें, क्या कहते हैं, यूसेज देखें यूजर की, इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? आपके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, आपके नंबर ऑफ व्यूज भी बढ़ रहे हैं, पर आप ये नहीं जानना चाहोगे कि इज इट इंक्रीजिंग रैपिडली, इज इट इंक्रीजिंग स्लोली, और ये मतलब डाउन जा रहा है इंक्रीजिंग में भी, या किस पॉइंट पे आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। सो यू नो डेटा हैज आंसर, बट दैट नीड्स टू बी विथड्रॉन फ्रॉम द डेटा। अब ये सब कुछ अगर मैं किसी यूट्यूबर को बोलूं कि बना ले, तो बना लेगा क्या? सब नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सबको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, यू जस्ट नो योर कंटेंट। यस। हाँ, तो ये समझ लो माइक्रोसॉफ्ट ने स्केल को काफी एक्सपैंड करके रखा हुआ है। अब हर काफी तरह से पावर BI का यूज कर सकते हो। सो दिस इज योर पावर BI ऐप। ये ऑलरेडी क्रिएटेड एप्स है क्या, जो मतलब किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बन चुके हैं ऑलरेडी? नहीं, ये इसमें एक चीज समझिए, आपका एक YouTube चैनल है, मेरा एक YouTube चैनल है, तो आप मुझे बताइए कि हम दोनों का जो डेटा होगा, अंडरलाइंग डेटा डिफरेंट होगा, पर स्कीमा, टेबल का स्कीमा डिफरेंट तो नहीं होगा ना? वो बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि बना कौन रहा है? गूगल ही तो जनरेट कर रहा है ना सारा बैकग्राउंड में, APIs के थ्रू वो जनरेट होता रहता है। एक ही सेट पैटर्न है उसका, टेबल स्ट्रक्चर सेट एक ही बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो मतलब अगर मैं एज अ डेटा एनालिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है, और उसको बेचना चाहता हूँ तो मैं बेच सकता हूँ। अब बस मेरे को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी पड़ेगी एंड यूजर को, भाई ऐसा करो, इस तरह का डेटा जनरेट करवा लो, या API ले लो यूट्यूब से, और उसको इस एक पर्टिकुलर एरिया पर डंप कर दो, और ये चल पड़ेगा। ऐसे छोटा सा, और अगर आप ब्रीफ देखना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे बता दूं मैं। जैसे ये वाला ले लेता हूँ मैं, अभी ये अपने अंदर छोटा सा डमी डेटा होस्ट कर रहा है, अब ये पूरा मुझे फिल करना पड़ेगा। नहीं, ऐसे नहीं, रुकिए, मैं एक और एग्जांपल, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने भी बना के रखा हुआ है, ये ले लेते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट का ही है, मैं इसे गेट इट करता हूँ यार, डिटेल ओके, चलो छोड़ो, मैं बस ये बता देता हूँ, ठीक है। जब आप इस रिपोर्ट को अपने ऐप में ऐड करोगे, तो टॉप में आपको एक छोटा सा ऑप्शन मिलेगा, प्रोवाइड टेनेंट ID। आपको बस टेनेंट ID देनी है, पूरी की पूरी रिपोर्ट रेंडर होनी शुरू हो जाती है। आपके टेनेंट ID से पूरा यूसेज निकाल लेगी, लाइक एक्सचेंज जो सर्वर है उसकी कितनी यूसेज आ रही है, वन ड्राइव की यूसेज क्या है, शेयर पॉइंट, स्काइप, यामर, टीम्स, उससे रिलेटेड जितनी भी लाइसेंस, एक्टिवेशन, प्रोडक्ट यूसेज, यूजर एक्टिविटी, सब निकाल देगा सिर्फ एक टेनेंट ID से।
मतलब पूरा बैकग्राउंड में माइक्रोसॉफ्ट ने एफर्ट डाल के ये रिपोर्ट बना के दे दी है आपको। अब वो जितना भी वो डेटा लेके आ रही है वो एपीआई के थ्रू कॉल करती है, इस रिपोर्ट में सिर्फ रेंडर कराने का काम होता है। अगर ये नहीं समझ में आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बस इतना याद रखिए कि पावर बीआई, दिस इज योर पावर बीआई ऐप, और ये सिर्फ और सिर्फ यूजर्स के लिए होता है, जस्ट टू कंज्यूम हिज और हर कंटेंट। इसमें हम एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ ओनली देख सकते हैं सर। हाँ, यस बीइंग अ यूजर आई कैन सी माय डेटा, और ये रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर इंटरवल पे अपडेट होता रहता है एज माय डेटा सेट रिफ्रेशेस इन द बैकग्राउंड। नाउ दिस पावर बीआई मोबाइल ऐप, अब मान लेते हैं मैंने कंटेंट तो बना दिया, मैंने सर्विस पे भी डाल दिया है। अब नाउ डेज हम कंटेंट को जब चाहे कंज्यूम करना चाहते हैं। इवन मैं अगर सोने जा रहा हूँ, राइट, पर मुझे एकदम से याद आता है, अरे यार शायद मुझे ये देख लेना चाहिए कि क्या मेरे सेल्स के फिगर्स नीचे तो नहीं जा रहे। सो उस टाइम पे मैं पीसी खोलूंगा नहीं, आई कैन डायरेक्टली ओपन माय मोबाइल एंड ओपन द ऐप, आई कैन डायरेक्टली सी माय कंटेंट फ्रॉम मोबाइल इटसेल्फ। सो ये इस तब काम आ जाएगा। सो ये 3 डिस्टिंक्शन है। सिंपल एक मोबाइल एप्लीकेशन है, आप एंड्रॉइड में और आईओएस में यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम पावर बीआई फ्री की बात करते हैं, हाउ मच डू आई हैव टू पे फॉर पावर बीआई फ्री लाइसेंस? 0, नथिंग। कुछ तो देना पड़ता होगा, इवन 60 डेज के लिए, 30 डेज के लिए कुछ तो देना पड़ता होगा। कुछ नहीं देना, केवल इंस्टॉल कर लो फिर। ओके ठीक है। व्हेन आई से सब्सक्रिप्शन, किस टॉपिक को रेफर कर रहा हूँ? सो आप अगर सब्सक्रिप्शन कह रहे हैं तो यू आर टॉकिंग अबाउट पावर बीआई प्रीमियम एंड पावर बीआई एम्बेडेड। ओके ठीक है। पावर बीआई प्रीमियम पर यूजर की कॉस्ट कितनी है? $20। आई हैव पावर बीआई प्रीमियम, सो व्हाई डू आई नीड पावर बीआई प्रो? $5-6 भी दे रहा हूँ, फिर प्रो के लिए अलग से $10 दूंगा, कुछ मीनिंग नहीं बनती, करेक्ट? तो प्रो की क्या जरूरत है मुझे जब मेरे पे प्रीमियम है? तो प्रो हम इसलिए यूज करते हैं, जैसे डेवलपर मोड जो है, कोई भी डेवलपर कुछ क्रिएट कर रहा है तो हम प्रो उनके लिए लेंगे ताकि वो अपना वर्क कर पाए, और प्रीमियम इसलिए रहेगा, वो जो 5000 यूजर, जितने भी यूजर हैं, वो उस जो डेवलपर ने क्रिएट करा है वो एक्सेस कर पाए उस रिपोर्ट को, उनके वर्क। ओके, एक मिनट, मैं थोड़ा क्वेश्चन घुमाता हूँ। अगर मेरे पास सिर्फ पावर बीआई प्रीमियम ही है और कुछ नहीं है, so can I create and deliver my content to end user? I just have Power BI Premium, nothing else. Can I create and distribute my content to end user? Yes. कोई इसको करेक्शन करना चाहेगा इधर कोई? So with premium we can definitely I can host, but I cannot share. शेयर करने के लिए मुझे प्रो या पर यूजर चाहिए होगा। सर मैंने क्वेश्चन नहीं समझ पाया कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पावर बीआई प्रीमियम है, मेरे पे प्रो नहीं है, मेरे पे फ्री नहीं है, मेरे पे प्रीमियम पर यूजर भी नहीं है। सो कैन आई क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट एंड होस्ट माय पावर बीआई रिपोर्ट्स एंड कैन डिस्ट्रीब्यूट टू एंड यूजर? नहीं, पर मेरे को प्रो या वो कुछ ना कुछ चाहिए होगा, क्योंकि प्रीमियम स्टैंडअलोन नहीं चलता। वो इसलिए क्योंकि प्रीमियम सिर्फ कंटेंट को प्रीमियम बनाता है और प्रो से डेवलपमेंट होती है। अगर आपके पास खाली प्रीमियम है तो आप कुछ नहीं कर सकते। सो इट इज जस्ट लाइक अ सब्सक्रिप्शन। सो सब्सक्रिप्शन मींस इट्स जस्ट लाइक एन अला कार्ट है। तो आपको पहले केबल का कनेक्शन लेना पड़ेगा, तब आप एक चैनल का अला कार्ट लोगे। तो वो केबल का कनेक्शन आपका प्रो भी हो सकता है और प्रीमियम भी हो सकता है। बहुत अच्छा एग्जांपल है। सो प्रो एज एन, कोई सही एग्जांपल दिया। प्रो एज एन आपने कनेक्शन लिया है, सिर्फ केबल का कनेक्शन ले लिया है, चैनल वगैरह नहीं लिए अभी तक। और चैनल क्योंकि लाइक कनेक्शन बनाना, तार वाला लगवाना, एंटीना लगवाना, सेट टॉप बॉक्स लेना, ये कंपलसरी है। इसके बिना तो मैं फ्री चैनल्स भी नहीं देख सकता। तो इट इज लाइक योर पावर बीआई प्रो एंड प्रीमियम पर यूजर। अब उसके बाद पावर बीआई प्रीमियम इज जस्ट योर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन अकेले काम नहीं कर सकता क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट से बनाया ही ऐसे है। सब्सक्रिप्शन में मानता हूँ इट हैज पावर, राइट, इतना महंगा भी है, बट उसको यूज करने के लिए मुझे एट मिनिमम पावर बीआई प्रो चाहिए।
क्या मैक्सिमम पावर BI प्रीमियम चाहिए, पावर BI प्रीमियम पर यूजर चाहिए। अगर मेरे पास सिर्फ एक पावर BI प्रो लाइसेंस है और पावर BI प्रीमियम है तो आई कैन मैनेज, मैं काम कर सकता हूँ। पर मेरे पास सिर्फ पावर BI प्रीमियम है तो मैं उससे कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि उस पावर BI प्रीमियम का यूसेज तब तक नहीं आएगी जब तक मैं कुछ कंटेंट पहुंचाऊंगा नहीं सर्विस पे, उसको प्रीमियम बना नहीं पाऊंगा। बिना प्रो के तो मैं कुछ नहीं है सर। हाँ। जैसे PPU है अपना, प्रीमियम पर यूजर, तो ऐसे भी कुछ कस्टमर्स होते होंगे जो पावर BI प्रीमियम जो है वो प्रीमियम पर यूजर के साथ होगा। हाँ बिल्कुल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आइडली ऐसा है तो गलत है फिर कॉम्बिनेशन, क्योंकि गलत, महंगा जा रहा है मतलब ज्यादा वो। हाँ, आप एडिशन कॉस्ट दे रहे हो, जबकि अगर आपने प्रीमियम ले ही रखा है तो PPU लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती आपको। हाँ, फिर प्रो के साथ वो लो फिर आप। हाँ, फिर प्रो के साथ ज्यादा बेटर है, मतलब PPU के साथ भी यूज कर सकते हैं, राइट। बट अगर आप फिर भी कर लेते हो, प्रीमियम में ले लिया, PPU भी ले लिया, तो आपने कॉस्टिंग ढंग से नहीं करी। इसका मतलब प्लान एक पैकेज में वो चैनल भी, एक पैकेज में वो चैनल भी है, तो जबरदस्ती दो जगह बेवकूफ हो गया ना वो फिर। मतलब ये बिल्कुल वैसा है कि कलर्स HD भी ले लिया और स्टैंडर्ड भी ले लिया। समझ गया, मैं समझ गया। तो फायदा नहीं हुआ ना। अब देखोगे स्टैंडर्ड लेके क्या करना है। ठीक है सर, ओके आगे। अच्छा एग्जांपल बताइए एलाकाटा। तो प्रीमियम के साथ एटलीस्ट हम होस्ट भी, अगर खाली होस्ट करना है वो भी नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं, आप प्रीमियम को यूज ही नहीं कर सकते जब तक आपके पास प्रो ना हो। फ्री नहीं काम करेगा आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे अगर प्रीमियम हम लेते हैं और साथ में हमें जितने भी डेवलपर हैं उनके लिए प्रो वर्जन लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। हाँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डेवलपर्स आपके पास 10 हैं, ठीक है, और आप ऐसा कर दीजिए 3 प्रो लाइसेंस ले लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली करना क्या है, एक को बनाना है, दूसरे से हम पब्लिश करवा लेंगे। ये तो हम कर ही सकते हैं। आपकी सबके लिए पूरे 10 लाइसेंस लेने की जरूरत, आप एक लाइसेंस से भी काम करा लो, बाकियों से बनवाओ और एक से होस्ट कराते रहो। होस्ट पब्लिशिंग सारा उसी से करा लो, बाकी आप पूरा मैनेजमेंट आपको लाइक उसमें, क्योंकि क्रेडेंशियल यूजर नेम वगैरह होता है, तो दैट कैन बी रिस्की। इसलिए 10 लेने भी पड़ सकते हैं, मे भी 5 से भी काम चल सकता है। जैसे आपके करंट ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे होगा, आप में से शायद आप लोग के पास प्रो लाइसेंस भी ना दे रखा हो, सिर्फ क्या रखा हो, उसे रिपोर्ट बना दो बस और इस बंदे को भेज देना। बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में कौन बताना पसंद करेगा? और मैं ही बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, मेरे को लिस्ट चाहिए 100 से लेके 200 तक की लिस्ट ऑफ वैल्यूज। 100 से 200 स्टार्टिंग फ्रॉम 100 एंड एट 200। तो फिर आप कीजिए इक्वल टू लिखिए और 100 के बाद 2 डॉट मार के 200 लिख दो, तो एक साथ आ जाएगा एक के इंक्रीमेंट पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे किन्हीं 3 बंदों की लिस्ट चाहिए, मुझे नाम की लिस्ट चाहिए। उस केस में हम इसी में कर्ली ब्रेसेस में डबल कोट्स में नेम लिखेंगे। हाँ बताइए। फर्स्ट नेम देन कॉमा, ओके, डबल कोट्स में सेकंड नेम राजू लिख देता हूँ, चलो, एंड देन कॉमा एंड देन डबल कोट्स में थर्ड नेम लिख दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। रिकॉर्ड कैसे बनाए जाते हैं बताइए, कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हैं उसके लिए। तो रिकॉर्ड के लिए आप पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, और स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद आपको कोई ना कोई हेडर जरूर देना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं हो सकता। तो जैसे नेम इक्वल टू राहुल। सर एक चीज और, नेम इक्वल टू राहुल, अब इसके आगे एक और जोड़ना हो तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे या स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट और खोलेंगे? अच्छा, अगर आप एक रिकॉर्ड बना रहे हो, मतलब एक रॉ बना रहे हो, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखो। अब जब एक रॉ की बात करते हैं, मतलब मल्टीपल कॉलम हेडर्स डालने पड़ेंगे, सो दिस बिकम्स योर कॉलम हेडर। ठीक है, कॉलम हेडर हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम कहते हैं एज ले लेते हैं, कॉमा दिया मैंने, एज इक्वल टू 25। देन हम कहते हैं सैलरी ले लेते हैं, मेरे को यही याद आ रहा है। ये एक सिंगल रिकॉर्ड बनेगा, दो दिख ऐसे रहा है, इसे रिप्रेजेंटेशन को इग्नोर कर दीजिए, रिकॉर्ड ऐसे ही दिखता है आपको। ठीक है, पर जैसे आप टेबल की फॉर्म में से कंस्ट्रक्ट कर देंगे तो ये वर्टिकली ना आके हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले होगा था।
अच्छा, एक चीज और मैं पूछ रहा हूँ सर, मैं मेरा भी क्लियर गया क्वेश्चन। अब जैसे नेम के नीचे राहुल लिखा हुआ है, यानी कि बगल में राहुल लिखा हुआ है, हाँ अब मैं एक नाम और इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो वो हाँ कहाँ करूँ? हाँ, सो दैट बिकम्स योर सेकंड रिकॉर्ड। हाँ ये तो सिंगल रिकॉर्ड है पूरा अपने आप में, एक सिंगल रॉ है। हाँ हाँ। अच्छा चलिए, आपके क्वेश्चन का आंसर देने से पहले इसको टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये बताइए। अच्छा, तो आप इस पे लिख दीजिए, पहले तो लिस्ट बना दो इसकी, अगर लिस्ट बनानी है तो करली ब्रेसेस लगा के। हाँ, फिर लिस्ट बन गया, लिस्ट ऑफ फिर रिकॉर्ड हो गई। हाँ, अब नाउ लिस्ट टेबल फ्रॉम रिकॉर्ड हो गया, अब तो टेबल डॉट फ्रॉम रिकॉर्ड और डबल ब्रैकेट मार दो और एंटर मार दो। सो ये बन गया आपका सिंगल रॉ। अब एक और रॉ डालने के लिए इस पूरी रिकॉर्ड को कॉपी करिए और उस करली ब्रेसेस के अंदर ही कोमा दीजिए एंड ऐड योर सेकंड रिकॉर्ड। तो सर हमेशा पहले मेरे को ये टेबल बनानी पड़ेगी, फिर मेरे को उस पर एडिट करना पड़ेगा, या मैं पहले भी कर सकता हूँ ये? अब पहले कर सकते हो पर रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगी। ओके, मतलब जब एंटर मारूंगा तो एरर आएगा, क्या आएगा? ले लेगा, ये ऐसे आएगा। देखो लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड हुई है सर। अगर आपको देखना है देन यू हैव टू क्लिक ऑन राइट, देन यू कैन सी द प्रीव्यू। अच्छा, पहले एक रिकॉर्ड की सारी एंट्रीज डाल दो, फिर दूसरा रिकॉर्ड डालना पड़ेगा। इसको अगर इस तरह से देखने में अगर दिक्कत लग रही है तो आई विल सिंपली डू लाइक दिस। इससे शायद देखने में इजी पड़े। अब ये एज अ रिकॉर्ड लग रहा है। मैं एक्चुअली खुद करने की कोशिश कर रहा था, पर वहीं फंस गया कि यार ये तो हो ही नहीं रहा। और अगर लिस्ट से ही टेबल बनानी है तो स्क्वायर ब्रैकेट हटा करके और लिस्ट से ही हम कर सकते हैं, उसमें टेबल डॉट फ्रॉम लिस्ट आ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो गेटिंग अ लिस्ट ऑफ फंक्शन, ये बताइए। अच्छा ठीक है, मुझे लिस्ट ऑफ फंक्शन चाहिए, बताइए कैसे आएगा लिस्ट ऑफ फंक्शन, कैसे आएगा? मतलब एक तरीका है जिससे मैं एक पावर क्वेरी के जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको सामने ला के देख सकूं यार। हाँ, तो कुछ हम एक काम कर सकते हैं, इक्वल टू मार के हैश शेयर्ड मार दो तो सब आ जाएंगे। याद रखिएगा जैसे मैंने पहले ही बताया था, पावर क्वेरी केस सेंसिटिव होती है। तो जहां पे स्मॉल में मांगेगा वहां स्मॉल में देना है, जहां कैपिटल में मांगेगा कैपिटल में देना है। आप चेंज नहीं कर सकते हो, या एरर देता है। जैसे यहाँ पे लिखा है शेयर्ड, स्मॉल लेटर कैपिटल बना दिया, प्रॉपर कर दिया, एरर सेंसिटिव है, बहुत नहीं मान। हाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, सो ये लिस्ट ऑफ फंक्शंस आ गए। इसको कन्वर्ट करना है तो इनटू टेबल कर दो, ये टेबल बन जाएगा। अंडरस्टैंडिंग फंक्शन एंड यूज, ये हम कर चुके हैं, क्वेश्चन तो है नहीं वैसे। इसका और भी यूसेज दिखाऊंगा मैं नेक्स्ट। ओके, क्वेरी पेन एंड क्वेरी सेटिंग्स। So this is your query pane and this is your query settings. कट कर लेता हूँ पहले। So this is the icon for your table. So query can contain a table. It can contain a list. It can contain a text. It can be a function also. बस icon दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा आइडिया लग जाए आपको। This is a table icon. Now मैं ब्लाइंड क्वेरी बनाता हूँ। मतलब ये लेफ्ट से ही पता चलता है कि वो एग्जैक्टली क्या है। अब ये क्या बन गई, एक टेक्स्ट क्वेरी बन गई जो सिर्फ एक सिंगल वैल्यू कंटेन करती है। अपने क्वेरी है, सिंगल वैल्यू कंटेन करती है। 1 to 3 इसका डेटा टाइप बता देता है। ABC is the text, 1 to 3 is your number. Now I'll type A, तो ABC हो गई। So this is another, this is single query और just query, इसको ऐसे बोल सकते हैं। Icon for the list, ठीक है, लिस्ट की तरह दिखा है। लिस्ट में सिर्फ ऑलवेज एक ही कॉलम होता है। एंड नाउ ये रिकॉर्ड का आइकन है, एंड दिस इज योर आइकन फॉर फंक्शन, क्वेरी एज फंक्शन। आई कैन सी फेमिलियरिटी हो, कोई क्वेश्चन है? सो मोस्ट नंबर ऑफ टाइम आप टेबल देखोगे, फंक्शन वाला हम लास्ट में कवर करेंगे। लाइक फंक्शन कैसे बनाते हैं वो बता दूंगा आपको। लिस्ट हम देख चुके हैं, ABC आई मीन सिंपल क्वेरी, 1 स्केलर वैल्यू क्वेरी देख चुके हैं हम, रिकॉर्ड हम देख चुके हैं। सो ये रह जाता है, ठीक है, ये हम लास्ट में करेंगे। ओके, नाउ
एक क्वेश्चन है, इसका यूसेज क्या है? टेबल तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं, उसके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर देते हैं। अभी अगर मान लो हमने एक लिस्ट बनाई या हमने एक रिकॉर्ड बनाया, उसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं टेबल इन अ रिपोर्ट? रिपोर्ट में तो यूसेज नहीं है। ओके, तो फिर हम क्यों बनाते हैं? अगर आप कोई लिस्ट बना रहे हो राइट, तो लिस्ट का यूज आप एम कोड में तो करोगे। अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, आप इस कोड को देखो पूरे को, ओके दिख रही है? यहाँ पे कई जगह पे लिस्ट यूज कर रहा है, यहाँ पे यूज कर रहा है, यहाँ पे यूज कर रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे ये जो कॉलम्स है, मतलब एक डायनामिक सिनेरियो अज्यूम कर लो, मेरे कॉलम के नेम चेंज हो जाते हैं। जैसे ये है, पता है कि यूजर कैन मुझे कस्टमर के नाम पे भी कॉलम दे सकता है, कस्टमर के नेम के नाम से भी कॉलम दे सकता है, या कस्टमर की जगह पे वो मेरे को कह सकता है कि क्लाइंट होगा ये। पर क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर हम चेंज टाइप कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हार्ड कोड क्या कर रहा है, कॉलम का नाम कर देता है। सही है? अगर जो चीज वो हार्ड कोड कर देगा, अगर वो बैकग्राउंड में ही चेंज हो गई तो एरर देगा ही आपको। तो इस केस में हम चाहें तो इस पूरे सिर्फ लिस्ट के आउटपुट को अलग से स्टोर कर सकते हैं, एक क्वेरी बना के जो डायनामिकली एक लिस्ट जनरेट करेगी, लिस्ट ऑफ नेम्स, लिस्ट ऑफ कॉलम नेम, तो हम आगे पास कर सकते हैं अपनी फर्दर क्वेरीज में। अभी नहीं समझ में आएगा, जब एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन करवाऊंगा ना, तो उसमें ये चीजें रिलेट करेंगी। समझ गया। तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि जो भी डेटा हमने इंपोर्ट किया है उसमें कस्टमर नेम की एक फील्ड है, तो वो कस्टमर नेम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इनग्रॉस हो गया, राइट? अभी नेक्स्ट टाइम अगर वो कस्टमर नेम चेंज होकर कस्टमर नेम 1 हो जाता है, तो उसको नहीं मिलेगा और वो एरर थ्रो करेगा। तो डिस्पाइट ऑफ इनग्रॉसिंग कस्टमर नेम, हम यहाँ पे एक लिस्ट पास कर देंगे और वो डायनेमिक होगी, तो जैसे ही लिस्ट में कोई भी वैल्यू एंटर होगी, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कर लेगा, तो उसमें एरर नहीं दिखाएगा। यस। स्मार्ट। अब हमारी क्वेरी पेन में मैंने डिफरेंट आइकन्स बता दिए, इसमें और क्या ऑप्शन है हमारे पास? एक चीज और मैंने काफी बार देखी, स्टेजिंग टेबल बनती है, वो एक बार प्लीज बता देना चाहूँ। मतलब दो टेबल्स होती हैं उसमें, मतलब कोई स्पेसिफिक यूज केस के साथ। अच्छा, कोई रिलेवेंस नहीं है। स्टेजिंग नहीं कहूंगा मैं उसको, इंस्टेड मैं कहूंगा ग्रुपिंग ऑफ टेबल्स। कई बार मोस्ट नंबर टाइम ये होता है, जब आप यूज पावर क्वेरी अ लॉट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पास लेफ्ट पेन में एक मेस हो जाता है। बिल्कुल, राइट? यू हैव लॉट्स ऑफ फंक्शंस, लिस्ट, पैरामीटर्स, है ना? यू हैव, मतलब बहुत सारे टेबल्स होती है। सो कई बार आपको कुछ फाइंड आउट करना है, तो यू कैन नॉट फाइंड इजीली, और कई बार आपको कंफ्यूजन भी होता है। सो उसको अरेंज करने के लिए यू कैन क्रिएट ग्रुप्स, और ग्रुप्स इज क्रिएटेड बाय वे ऑफ फोल्डर्स। जैसे मेरा ऊपर वाला जो ग्रुप है, फोल्डर ग्रुप है, आई कॉल इट क्वेरी, जस्ट क्वेरी। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी फंक्शंस को रखूंगा, पैरामीटर्स को रखूंगा, बस इस तरह से मैनेज कर सकता हूँ। ओके, इस तरह से मैं फर्दर और ग्रुप बना सकता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे गया, राइट क्लिक, मूव टू ग्रुप, अब न्यू क्वेरी कर देता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ ऑर्डर्स टेबल। कुछ और नाम के दे सकता हूँ। अभी ऑर्डर टेबल के अंदर मेरी ऑर्डर आ गई। अब इस ग्रुप के अंदर मैं फर्दर जितने चाहे उतने बना सकता हूँ। ठीक है, मेरी इच्छा है। मैं ये सिर्फ मैनेजमेंट के हिसाब से बेस्ट अरेंज करना और ना ऑल दैट। ठीक है, ये हो गया ग्रुप का यूज। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप पता हो, सो ये एक मेन्यू बार आता है यहाँ पे राइट क्लिक करने पे। ठीक है, क्योंकि छोटा दिखेगा इसलिए कॉपी पेस्ट कर। सो अनेबल लोड, इसमें टिक है, मतलब ये लोड अनेबल करेगा। अब क्वेश्चन ये आता है, लोड का क्या मतलब होता है? लोड का मतलब होता है स्टोर करना। प्लीज स्टोर और इक्वल टू स्टोर करना, स्टोर इनटू मॉडल, दिस इज कॉल्ड लोड। और जब मैं इस पे अनटिक कर दूंगा, इट मींस आई डू नॉट वांट मेरा पावर क्वेरी का जो आउटपुट है, आई डू नॉट वांट दैट टू बी स्टोर्ड इन पावर बीआई मॉडल, पावर बीआई के स्टोरेज इंजन में ना जाए, वो उसको मना कर रहा हूँ। अगर मान लो ऑर्डर्स टेबल थी ये और उस पे इनेबल लोड टिक है बाय डिफॉल्ट, तो यानी वो स्टोर कर रहा है। अभी मान लो मैं अनटिक कर देता हूँ, तो इसका मतलब है कि वो स्टोर नहीं करेगा, मतलब है कि वो टेबल ही लोड नहीं करेगा, मतलब वो टेबल मुझे नहीं दिखेगी और उससे मैं कोई कैलकुलेशन नहीं बना पाऊंगा, यही मतलब है क्या? जो पावर क्वेरी देखते हो, दैट इज जस्ट द ट्रांसफॉर्मेशन। आप डेटा तो ले आए, पर ये जो आप डेटा देख रहे हो, ये पूरा डेटा नहीं है, इट इज जस्ट, ये बॉटम में देखिए क्या लिखा हुआ है, 21 कॉलम्स 999 प्लस रोज
कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन टॉप 1000 रोज। अच्छा, तो ठीक है। मतलब कुछ सैंपल रिकॉर्ड्स आते हैं जिस पे ट्रांसफॉर्मेशन होती है। हाँ, ये सिंपल एक प्रीव्यू होता है आपके पास, पूरा डेटा नहीं होता है, सिर्फ एक प्रीव्यू होता है जिसको आप थोड़ा और कंट्रोल मतलब स्क्रॉल डाउन करके और प्रीव्यू बढ़ा सकते हो, पर एट ईच सेट ऑफ वैल्यूज पे ये सिर्फ 1000 रिकॉर्ड ही दिखाता है। तो ये सर गलत नहीं है क्या? नहीं, गलत नहीं है, क्योंकि उसका पावर क्वेरी का पर्पस क्या है? डेटा को ट्रांसफॉर्म करना, ना कि परफॉर्म तो करता होगा ना, कैलकुलेशन ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करता होगा, लेकिन दिखाता 1000 ही है। बिल्कुल यही है इसका मोटिव। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि अपने पास कुछ मत रखो, इसको बस पास ऑन करते रहो। अच्छा, तो ये वही करता है। ये क्या करता है? पावर क्वेरी, आप ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करते हो, इस सेट नंबर ऑफ फील्ड्स पे परफॉर्म कर देता है, और जब आप लोड करते हो तो सब कुछ दोबारा से रन करता है। मतलब डेटा बैकग्राउंड से खींचता है, उस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता है और लोड करते हुए जाता है, लाइक अ मशीन। अपने पास कुछ नहीं रखेगा, मैनिपुलेट करना और लोड करना, मैनिपुलेट करना और लोड करना, ये करता है। तो जब हम लोड की बात कर रहे हैं, हम स्टोरेज की बात, स्टोर करने की बात कर रहे हैं। मैंने इसको, इस टिक को अगर बंद कर दिया, इट मींस मैं सिस्टम को कह रहा हूँ डोंट स्टोर दिस टेबल। सर हमें क्या करना चाहिए, मतलब एज अ बेस्ट प्रैक्टिस की इनेबल लोड भी रखें? अगर हमें क्लाइंट ने कुछ नहीं कहा तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ, वो भी बताऊंगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया लोड क्या है, एनेबल लोड क्या है। नहीं, अगर इसे अनचेक कर हाँ, देंगे, अनचेक करेंगे तो क्या होगा? हाँ वही, तो कहाँ लोड नहीं हो रहा है मतलब। ओके, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, दिस इज योर ब्लैंक पावर बीआई, यू डू नॉट हैव एनी डेटा ओवर हियर, नो फील्ड हियर। सो मैं देख सकता हूँ मेरे पास सिर्फ 4 टेबल्स हैं। मैं यहाँ पे गया, क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक किया, अभी ये पूरा रन कर रहा है। फर्स्ट कनेक्शन बना रहा है, फिर इवैल्यूएट करेगा, फिर लोड करेगा, लोडिंग करेगा। अभी नंबर ऑफ रिकॉर्ड उसके बाद ही ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड दिखाता है। अब ये स्टोरेज क्रिएट कर चुका है और आपके सामने अब टेबल रिप्रेजेंट कर देगा। अब देखिए सब कुछ आ गया, ये डेटा आ गया आपका। ये डेटा कैसे लेके आया? कहीं ना कहीं तो रखता होगा ना, कहीं ना कहीं तो रखेगा ना, नहीं तो यहाँ पे हम देख कैसे सकते हैं? अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे सारे रिकॉर्ड देख सकते हैं हम। यहाँ पे ऑलमोस्ट 10,000 रिकॉर्ड है इसके अंदर। इवन 1 मिलियन होंगे तो भी दिखाएगा 1 मिलियन, बिलियंस होंगे बिलियंस भी दिखाएगा, अगर लोड कर पाए तो, मतलब स्टोर कर पाया तो। ठीक है, अब इस स्टेज में अभी पावर इंजन में है, नहीं, पावर बीआई के स्टोरेज इंजन, स्टोरेज इंजन बोल लो या वेयरहाउस बोल लो उसका। अभी क्या है, ऑर्डर्स की टेबल थी, इसमें थे 10,000 रिकॉर्ड्स। मैं होम पे जाता हूँ, ट्रांसफॉर्म डेटा में जाता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ ऑर्डर्स पे एंड इस अनेबल लोड को बंद कर देता हूँ। ये क्या कह रहा है? डिसेबलिंग लोड विल रिमूव द टेबल फ्रॉम द रिपोर्ट, एनी विजुअल दैट यूज इट्स कॉलम्स विल बी ब्रोकन। ओके किया मैंने। अब हल्का सा अगर नोटिस करेंगे, ये आइटैलिक हो गया है, देख रहे हैं, हल्का सा आइटैलिक। राइट। तो ये इसका वो है, मतलब आइडेंटिफायर है कि लोड बंद है, लोड बंद है। ओके, क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ। अब यहाँ से ऑर्डर्स उड़ जाएगा, चला गया ऑर्डर्स, बिल्कुल। तो ऑर्डर्स की टेबल नहीं है तरफ, वो क्वेरी बना है इसमें, कुछ और मत समझना। ऑर्डर्स रिलेशनशिप व्यू में भी नहीं आएगा फिर। अब ये मॉडल में ही नहीं है, आपके मॉडल बोले स्टोरेज इंजन में ही नहीं है, और जो चीज ही नहीं उसको से रिलेटेड बना नहीं सकते। बिल्कुल। पर अब एक डाउट सिर्फ ये है कि अगर हमारे पास ये ऑप्शन यहाँ पर आके करने का है, तो हम इसको फर्स्ट स्टेज पे लेकर ही क्यों आए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जब हमें इसे यूज ही नहीं करना है? ये फॉर एग्जांपल अगर आगे हमें इसको अनचेक ही करना है, तो इसे हमें इंपोर्ट ही नहीं करना चाहिए, या तो इंपोर्ट ही मत करो स्टार्टिंग में, नहीं। या यहाँ से अनचेक कर दो, तो क्या है? पावर क्वेरी जो है एक इनिशियल लेयर है, उसके थ्रू पास होती ही होती है। इट्स लाइक एंट्री टू पावर बीआई। बिल्कुल, वो बात सही है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि पावर क्वेरी के बाद भी अगर किसी को उसको अनचेक करना है और उसको मॉडल में स्टोर नहीं कराना, तो उसको इंपोर्ट करने का भी फायदा नहीं है, राइट? मतलब लेकर ही मत आओ, ट्रांसफॉर्मेशन करनी जरूरी नहीं है। आप अभी इसकी यूसेज पे मत जाओ कि इसका यूज क्या है, क्यों करूं मैं, इसमें मत जाओ, फंक्शनैलिटी देख लो बस फिलहाल। ये यूसेज है, बहुत बढ़िया यूसेज है, मैं खुद करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया यूसेज है। यूसेज बताऊंगा, पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ।
ये एनेबल लोड का मतलब क्या है वो पता चल गया। क्लियर हो गया, बिल्कुल। तो लोड का मतलब बताइए क्या होता है, स्टोरेज इंजन में डेटा को स्टोर करना, बस यही। हाँ, एनेबल करने का मतलब है अलाउ कर रहे हैं कि भाई जाके स्टोर कर दो। अब वो डेटा स्ट्रक्चर्ड हो, कचरा हो, कुछ भी हो, हमने अलाउ कर दिया है, बाय डिफॉल्ट एनेबल रहता है, ठीक है। तो मतलब हमारी परमिशन डिफॉल्ट है, बाकी हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। बिल्कुल उसी सिमिलर फैशन में ये भी एक ऑप्शन है, इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश। सिर्फ इस इंग्लिश मैनर में लिखे हुए छोटे से सेंटेंस फ्रेज को, राइट, फ्रेज को से जो आप समझ पा रहे हैं एग्जैक्टली इसका मतलब वही है। इसका मतलब हुआ जब भी रिपोर्ट को आप रिफ्रेश करेंगे तब ये आइटम बोले तो जिस पे आपने इसको सिलेक्ट करके देखा, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्डर्स पे मैंने राइट क्लिक किया था, तो ऑर्डर्स रिफ्रेश होगी जब भी फुल रिफ्रेश रन करेगा, ऑर्डर्स रिफ्रेश होगी। तो ये कह सकते हैं कि ये ऑप्शन वहां पे यूजफुल है अगर हमारी कोई स्टैटिक टेबल है जो हमें पता है कि डिस्पाइट हम कितनी बार भी डेटा लेकर आ जाएं वो टेबल वैसी की वैसी रहेगी, तो उसका अगर हम रिफ्रेश बंद कर देंगे तो वो टाइम नहीं लेगी इवैल्यूएशन उसमें। करेक्ट। हाँ जी, कुछ रिलेट कर पाए इससे इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश? इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश का मतलब यही है कि जिस टेबल पे हमने राइट क्लिक करके किया है और जैसे ऑर्डर टेबल है तो उसको हम रिपोर्ट रिफ्रेश में लेके आए कि ना है। इनेबल लोड हटा ही देंगे तो वो रिफ्रेश में भी नहीं आएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब अगर मैंने इनेबल लोड से चेक हटा दिया, हाँ, और इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश से लिखा है, यस, तो इनेबल लोड से हटाया और इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश, तो ये बेफालतू में बहुत ज्यादा टाइम लेगी रिपोर्ट रिफ्रेश करने में। लॉजिक सही है पर ये दोनों आइटम इंडिपेंडेंट है। कैसे सर? अगर हमने लोड ही नहीं की उस टेबल को तो वो नेक्स्ट टाइम रिफ्रेश कैसे होगी? अगर हमने कोई टेबल स्टोरेज इंजन में नहीं लेकर आए और उसको रिफ्रेश का ऑप्शन हमने टिक करके रखा, तो नेक्स्ट टाइम अगर हम अपने रिपोर्ट को रिफ्रेश करेंगे तो जो टेबल हमारे स्टोरेज इंजन में नहीं है वो रिफ्रेश भी नहीं होगी फिर। सो ओवर लेवल पे स्टार्टिंग फ्रॉम पावर क्वेरी टिल योर डेटा स्टोरेज मतलब मॉडल पूरा रिफ्रेश होता है, ठीक है। इवन इफ अगर आपने लोड भी बंद कर रखा हो तो ये रिफ्रेश करेगा, ये रिफ्रेश करता ही करता है। अब ऐसा क्यों है? फॉर एग्जांपल ऐसा क्यों है? वही बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, अभी समझाता हूँ। इसका मैं रिफ्रेश अनेबल लोड अनेबल कर देता हूँ। अब इस पे थोड़ा गौर करना, इस वाले टेबल में पीपल है, सेल्स पर्सन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और ऑर्डर्स की टेबल में भी है हमारे पास। इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं लग रही मेरे को। अभी मैं यहाँ पे गया, क्लोज एंड अप्लाई कर दिया। मेरी ऑर्डर्स की टेबल में मेरे पास सेल्स पर्सन नहीं है, पर्सन सिर्फ मेरे पास पीपल के टेबल में है। इसका मतलब मुझे रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी। सो ऑर्डर्स आईडी मैंने उठाई और मैंने यहाँ डाल दी। हाँ, पीपल से तो ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका है। इसका मतलब देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड ऑर्डर्स। इस रिलेशनशिप के वजह से ही मैं सेल्स पर्सन वाइज आई कैन सी सेल्स। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स लाइक दिस स्टार स्कीमा ऑफ डायमेंशन को फैक्ट। ये ठीक है, पर्सन उठाया मैंने, ऑर्डर्स पे गया एंड आई कैन सी सेल्स, ठीक है, सिर्फ इसी वजह से। पर क्या ये जरूरी है कि मेरे को अलग से एक टेबल बना के रखनी पड़े? क्या मैं इस पर्सन को यही ना डाल दूं? वो भी तो सही होगा, एक ही बात पड़ जाएगी। हाँ, वो इजी हो जाएगा, ज्यादा रिलेशनशिप ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें एज अ टेबुलर ही कंटेंट कंज्यूम करने की आदत है। एक टेबल में ही सब दे दो, हमारे लिए और इसी रिलेशनशिप की माथा पच्ची की जरूरत नहीं। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई जो चीज ऑर्डर्स की टेबल में है नहीं तो मैं लाऊं कहां से? आप कहोगे भाई ऐसा करो, लुकअप लगा दो, पीपल की टेबल से लुकअप लगा दो, ठीक है, ये भी सही ऑप्शन है। हम ऑर्डर्स की टेबल में चले जाते हैं, यहाँ पे मर्ज क्वेरी में चले जाते हैं ऐसे, और सीधा सीधा यहाँ पे पर्सन पकड़ लेते हैं, पीपल सॉरी, यहाँ पे हम चले गए रीजन पे और रीजन वाइज हमने सेल्स पर्सन उठा लिया और ओके कर दिया मैंने ऐसे। और अब यहाँ से रीजन में हटा देता हूँ और यहाँ पे मेरे पास सेल्स पर्सन आ गए, हो गया काम। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये तो हो गया, अब मुझे आप बताओ, जब मेरे सेल्स पर्सन मेरे ऑर्डर्स के टेबल में आ गए तो क्या मुझे इस पीपल के टेबल को, पीपल का पेड़ नहीं है ठीक है, वो मत समझिएगा, पीपल टेबल को लोड करने की जरूरत है मॉडल में? अच्छा, सेंस किया? अब
बिल्कुल बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, क्योंकि पीपल की टेबल एज अ बेस टेबल यूज हो रही है मर्जिंग में। गलत गलत, नहीं है जरूरत। अब भाई जो चीज मैं उठा के मैं ऑर्डर्स में डाल चुका हूँ, तो ऑर्डर में तो स्टोर होगी ना। अब मैं अगर पीपल के टेबल को लोड डिसेबल कर दूं, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन मेरे पास पीपल में है सेम इंफॉर्मेशन ऑर्डर्स में भी है, ऑर्डर्स को बाय एनी वे मुझे मॉडल में ले जाना ही है। मैं उसका लोड डिसेबल नहीं कर सकता। जब ले जाना ही है तो पर्सन के साथ ले गया मैं। अब पर्सन जिसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं अलग से उस टेबल को क्यों लोड करूं जिसकी मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। इससे इंफॉर्मेशन उठा के मैंने यहाँ फ्लो करा दी, यहाँ पे मेरे पे पर्सन आ गया। अब पीपल को मैं लोड नहीं करता क्योंकि इसकी मेरी जरूरत खत्म। मैं यहाँ चला गया, यहाँ से पीपल उड़ जाएगा, पर पीपल की जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे ऑर्डर्स में आ रही है क्योंकि मैंने लुकअप लगा लिया है। ओके ओके, तो मतलब पावर क्वेरी लेवल पे हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन कर ली वो लोड करने के बाद रिकमेंडेड वे नहीं है, पर सिर्फ समझाने के लिए ऐसे किया। काम तो वही चला ना, कोई इशू नहीं आया नहीं। तो कहने का मतलब है ऐसे कई सारे सिनेरियोज होते हैं जो इस तरह से थोड़ा घुमा के अचीव हो जाते हैं। अब इसमें मेरे को एटलीस्ट ये तो समझ में आया कि किसकी यूसेज है किसकी नहीं। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ से डेटा उठा के मैंने यहाँ डाल दिया, तो क्या मुझे पीपल के टेबल को रखने की जरूरत है? नहीं। क्या मैं इसे डिलीट नहीं मार सकता? मार सकते हो। डिलीट नहीं मार सकते वो, इसलिए क्योंकि आपने डिलीट मार दिया तो फिर मर्ज नहीं किया आपने। करेक्ट, मर्ज क्या हुआ है ना रीजन के नाम, तो उसकी रिलेशन वहां से डिलीट हो जाएगा ये जिस टेबल में गया हुआ है। यहाँ से डिलीट मारते ही ये यहाँ पे एरर मारेगा क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग बना चुका है, इसके साथ एक जॉइन बना चुका है। ओके, तो यहाँ पे वो यूज केस आएगा कि टेबल को हमें लेकर आना ही पड़ेगा फर्स्ट लेयर पे, उसका हम लोड यहाँ पे बंद कर सकते हैं अगर हमारा काम पूरा हो जाएगा, पर हम उसको डिलीट नहीं कर सकते। अब मुझे आप बताइए, पीपल के टेबल को क्या मुझे रिफ्रेश करने की जरूरत है? पीपल के टेबल को बिल्कुल है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर मान लो इसमें रीजन ऐड होते हैं और पर्सन के नाम ऐड होते हैं तो वो मर्ज को आप लोगों ने बोला था यार इसको जब मैं लोड ही नहीं कर रहा तो मैं रिफ्रेश क्यों करूं? ओके नहीं, जब मैं लोड ही नहीं कर रहा तो मैं रिफ्रेश क्यों करूं इसको? है ना? पर रिफ्रेश आपको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि भाई डेटा तो यहाँ आएगा ही, दिखेगा ना, इसके कैशे में तो है, मतलब कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू डेटा ये सोर्स से तो लेके आएगा, यहाँ पे इसकी मेमोरी रखेगा, पूरी नहीं रखेगा पर एटलीस्ट एक कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू इस वाया पीपल टेबल ये फ्लो तो ऑर्डर्स में ही करने वाला है। समझ है ना? मान ली अगर पीपल बढ़ गए या पीपल चेंज हो गए तो रिफ्रेश तो होगा ही। रिफ्रेश तो होगा ही। तो अगर मान लो चेंज हो गए, सपोज मैना की जगह अगर मैना आ गया तो मैना तो डालने के लिए रिफ्रेश करने के लिए नाम तभी चेंज होगा। करेक्ट। सो मतलब पीपल का टेबल तो इज नेसेसरी टू रिफ्रेश। लोड नहीं करना चाहो मत करो, क्योंकि लोड करने के लिए तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी यहाँ है, स्टोरेज हो चुकी है। ओके ओके, गॉट इट। और रिफ्रेश किया और लोड किया। गॉट इट। और बाय चांस इसका रिफ्रेश बंद कर देते हैं तो डेटा सोर्स में अगर कुछ भी चेंज हुआ और यहाँ पे अगर वो रिफ्रेश नहीं होगा तो वो चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा तो हमारी ऑर्डर टेबल में भी वो नए अपडेट्स नहीं दिखेंगे। अगर आपने इसका रिफ्रेश बंद कर दिया पीपल का, ठीक है, ये 4 आइटम जो देख रहे हो 4 ही रहने वाले हैं, बट ऑर्डर्स की टेबल जो है वो तो रिफ्रेश करेगी अपने आप, क्योंकि इसका रिफ्रेश आपने बंद नहीं किया है। और नुकसान ये हो जाएगा, पीपल का जो कॉलम है आपका ये हमेशा ओल्ड सेल्स पर्सन ही दिखाएगा। अच्छा, क्योंकि ये अपने इस कॉलम को रिफ्रेश करेगा बेसिस द अवेलेबल इंफॉर्मेशन इन पीपल। बिल्कुल समझ रिफ्रेश का आगे मुझे थोड़ा सा लोड में कंफ्यूजन हो रहा है। अगर मान लो मैंने पीपल को लोड नहीं किया, लोड नहीं हो रहा पीपल, तो क्या होगा? अगर मैं इसको लोड नहीं करती तो हटा देती, मैं इस पे लोड नहीं दिखेगा। करेक्ट, ये नहीं दिखेगा। तो अगर ये दिख नहीं रहा तो यानी कि वो पावर इंजन में नहीं है अभी। बिल्कुल नहीं है। तो वो कहाँ है फिर पीपल? क्योंकि ऑर्डर्स तो यूज कर रहा है, उसको मैं रिफ्रेश भी कर रही हूँ। मैंने अगर क्लोज एंड अप्लाई कर दिया अभी, तो वो टेबल मॉडल में दिख ही नहीं रहा वो टेबल मेरे को।
हाँ लेकिन राइट, ऑर्डर उसको यूज कर रहा है, उस मर्ज्ड हाँ है ना कॉलम को यूज कर रहा है और एग्जैक्टली, रिफ्रेश भी हो रहा है, तो वो बिल्कुल। पीपल कहाँ है फिर? ओके, सो पीपल जो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन विंडो पे है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा कनेक्शन लेयर पे है ये। इसमें से जो पर्सन के कॉलम था उसको हम ऑर्डर्स के टेबल में डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, और ये सिर्फ एज अ पाइपलाइन की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे, जिसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ पर्सन की डिटेल फ्लो हो रही है पीपल की टेबल में से और ऑर्डर्स की टेबल में जाके बैठ रही है, और यहाँ पे है। ठीक है, जब हम लोड करेंगे ये कॉलम एडिशनली ऑर्डर्स की टेबल में ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम इसको लोड नहीं कर रहे, या ऐसे समझते हैं। एक मिनट, इसका लोड मैं अनेबल कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से इन दोनों को हटा दे। अब मैं लोड अनेबल कर चुका हूँ, इसका मतलब है इन तीनों पे रिफ्रेश भी चल रहा है और लोड भी चल रहा है। ये एरर मारेगा तो मारेगा ये, ठीक है। अब अगर मेरे को सेल्स बाय सेल्स पर्सन देखना है तो मेरे को पर्सन यहाँ से उठाने पड़ेंगे पीपल के टेबल में से। इतना क्लियर है? हाँ। ओके, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या ये जरूरी है कि मेरे को पीपल की टेबल से ही, मतलब अलग से पर्सन को पीपल के टेबल में ही रखना पड़े? मैं ऑर्डर्स की टेबल में भी तो रख सकता हूँ उसको, ऐड कर सकते हैं। हाँ। आपको कुछ तरीके पता भी हो, आप यहाँ पे एक कॉलम बना सकते हो, कैलकुलेटेड कॉलम, उसके थ्रू भी यहाँ पे ला सकते हो, पर ये इंफॉर्मेशन रिपीटेशन हो जाएगा इंफॉर्मेशन का, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अगर पर्सन यहीं पे अवेलेबल है तो मैं इसको ही क्यों रखूँ? मेरी इसको रखने की जरूरत तो खत्म हो गई ना। अगर पर्सन यहाँ आ गया तो मैं इस टेबल को क्यों रखूँ? मेरा ये क्वेश्चन। तो अब पर्सन को यहाँ लाने के लिए मेरे पे दो तरीके हैं। मैं पावर क्वेरी के थ्रू भी वो काम कर सकता हूँ और यहाँ पे कैलकुलेट कॉलम के थ्रू भी वो काम कर सकता हूँ। तो यही मैं कह रहा हूँ कि मैंने पर्सन को अलग से ना मेंटेन करके मैंने ऑर्डर्स की टेबल में मैं ले आया पावर क्वेरी में, ठीक है। पर ऑर्डर्स की टेबल में लाने के लिए मुझे इस टेबल के थ्रू ही ऑर्डर्स की टेबल में डालना होगा, क्योंकि ऑर्डर्स की टेबल में पर्सन का कोई कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता। इवन मेरे डेटाबेस में मैनेज ही ऐसे ही है, पीपल के लिए अलग से एक टेबल बनी है, ऑर्डर्स के लिए अलग से टेबल है, रिटर्न्स के लिए अलग से टेबल। और इसका मतलब ये हुआ जब भी सेल्स पर्सन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट होगी तो पीपल के टेबल में ही होने वाली हो, ठीक है। जो चीज यही अपडेट होगी तो मतलब इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग तो होनी ही चाहिए मेरे पास। अगर मान लो हमारे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हमारे मैनेजर या पर्सन जो है वो चेंज ही नहीं हो रहे, स्टैटिक है वो, तो उस केस में तो मुझे रिफ्रेश की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल, ठीक है, ये रिफ्रेश होता है तो भी ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है, सिर्फ ऑर्डर्स रिफ्रेश हो जाए। हाँ, ठीक है। लोड का स्टिल मेरे को नहीं समझ आ रहा। मतलब जितने भी स्टेप्स मुझे दिख रहे हैं अप्लाइड स्टेप्स, जब मैं रिफ्रेश करती हूँ या मेरा जब भी मतलब मैं रिफ्रेश करती हूँ तो मेरा डेटा भी लोड होता है, रिफ्रेश भी होता है स्टेप बाय स्टेप। हाँ करेक्ट। मतलब पहले सोर्स में जाएगा, फिर नेविगेशन में जाएगा, फिर मतलब शुरू में पहले उसको पीपल भी दिखेगा, उसके बाद उसको रिमूव करेगा जैसे मैंने किया होगा। यही भी नहीं है इसका। मतलब जब आपने कहा था ना कि क्वेरी की साइड से ही वो रिफ्रेश करता है, यानी कि मैंने जितने भी अप्लाइड स्टेप्स किए होंगे सारे स्टेप्स में वन बाय वन जाएगा ना। करेक्ट, रिफ्रेश करते टाइम। हाँ जाएगा। रिफ्रेश में जो तरीका से यूज करना है, मतलब इस पूरे एम कोड को यूज करता है ये, उसके बाद ये रिफ्रेश करता है, ठीक है। रिफ्रेश करके ये समझ लो एक कनेक्शन की स्ट्रिंग बन चुकी है जिसके थ्रू ही पूरा डेटा फ्लो होने वाला है। ये हो गया एक पाइपलाइन, ये होगी दूसरी पाइपलाइन, ये होगी तीसरी पाइपलाइन, ठीक है। डेटा आएगा इन पाइपलाइन के थ्रू ही गुजरेगा, और आपके पाइपलाइन की स्टार्टिंग में यू हैव योर डेटा सोर्स जो कि एक्सेल हो सकता है, SQL हो सकता है, और पाइपलाइन के एंड में आपके पास क्या है, योर पावर बीआई स्टोरेज मॉडल, स्टोरेज इंजन, ठीक है। अगर मैं जो पीपल की इंफॉर्मेशन है डायरेक्टली स्टोरेज इंजन को भेजूं, उसकी जगह पे अगर मैं उसको मोड़ के ऑर्डर्स के टेबल में ही डाल दूं अगर, और इसका एंड बंद हो जाएगा ना, उसके बाद फिर बंद हो जाना चाहिए आइडली, करेक्ट, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ मिल रही है वो मैं फ्लो ऑर्डर्स की टेबल में करवा दे रहा हूँ। बिल्कुल, डायरेक्ट स्टोरेज इंजन को पॉइंट नहीं करके ऑर्डर्स को पॉइंट करेगा और ऑर्डर्स फर्दर स्टोरेज इंजन को पॉइंट करेगी। तो बस कहने का ये मतलब है कि एक इंफॉर्मेशन दो टेबल में अवेलेबल कराओगे तो रिसोर्स को अननेसेसरी यूज कर रहे हो जो बिना जरूरत की।
ओके, तो ये भी हम बोल सकते हैं कि एक ऑप्टिमाइजेशन का तरीका है, राइट? अगर हम लोगों ने कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन कर दी जिसकी वजह से हमें टेबल की जरूरत नहीं है और उस टेबल का लोड हम बंद कर दें, तो वो भी ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करेगा, राइट? एट डेटा मॉडल लेवल। यस। ओके, ठीक। क्योंकि पूछते हैं इंटरव्यू में ये क्वेश्चन कि भाई ऑप्टिमाइजेशन के तरीके बताओ मॉडल लेवल पे और रिपोर्ट लेवल पे और डेटा सोर्स लेवल पे। हाँ, मैं एक तरीके से आप ये समझो कि ये एक तार के रूप में आप इसको यूज कर रहे हो, ठीक है? लेकिन तार जो है वो आ कहाँ से रही है? बिजली के खंबे से आ रही है, करेक्ट? तो तार और बिजली के खंबे से आ रही है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तार आपको अगर करंट दे रही है तो बिजली का खंबा ही हटा दोगे, है ना? तो जब तक बिजली का खंबा रहेगा तभी जो है रिफ्रेश होगा। इसको आप सीधा सीधा ऐसे रिलेट कर सकते हो। Okay. तार इज जस्ट लाइक अ स्ट्रिंग, जैसा कहा सर ने अभी कि तार आपको वो केवल आपके बिजली के खंबे तक ले जा करके आपको तार लाके दे रही है। अगर आपने बिजली का खंबा ही हटा दिया तो फिर वो तार भी का कोई यूज नहीं है। एम आई करेक्ट? हाँ, डेटा सोर्स में ये सिर्फ 2 कॉलम ही स्टोर हो रही है। ऑर्डर्स में जितनी स्टोर होनी चाहिए वो उतनी हो रही है। ऑर्डर्स की डिटेल कंटेन करता है। मेरे लिए ये जरूरी नहीं है कि मैं सेल्स पर्सन को अलग से मेंटेन करूं या ऑर्डर्स में डाल दूं। जैसा आप डेटा सोर्स से आ रहा है मैं वैसे भी रख सकता हूँ, उसके रिलेशनशिप को वैसे भी यूज कर ही सकता हूँ। ठीक, अभी फ्रॉम लोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाह रहा हूँ मैं, या ये बताना चाह रहा हूँ, जानना नहीं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप मुझे बताइएगा, अगर मैं सेल्स पर्सन को ऑर्डर्स की टेबल में ही अवेलेबल करवा दूं, अगर अवेलेबल करवा देता हूँ, इवन डेटा सोर्स से ही अवेलेबल करा दूं डायरेक्टली, तो आप मुझे बताओ कि क्या आपको पीपल टेबल की जरूरत पड़ेगी तब? अगर डेटा सोर्स से होगा तो नहीं होगा, नहीं जरूरत पड़ेगी, करेक्ट? जब जरूरत ही नहीं है तो आप इसको रखोगे नहीं, यहाँ पे लाओगे ही नहीं सही में तो। हाँ लाएंगे। ठीक है, ये हो गया 1 पॉइंट। बाई चांस मैं ये कहता हूँ कि ऑर्डर्स की टेबल में ही है नहीं, पर सेल्स पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ पे, क्योंकि हर एक टेबल अलग अलग इंफॉर्मेशन कंटेन करती है। इसका मतलब हर टेबल को रिफ्रेश करना जरूरी है ताकि कनेक्शन स्ट्रिंग इंटैक्ट बना रहे। कनेक्शन स्ट्रिंग बनी रहेगी तभी रिफ्रेश हो पाएगा। ठीक है, और उसके बाद लोड भी मुझे बनाए रखना पड़ेगा। अगर अनेबल लोड में नहीं रखता तो इसका मतलब मॉडल में नहीं जाएगा, स्टोर नहीं होगा। मतलब इस स्टेट के ये पावर क्वेरी के स्टेज के बाद जो नेक्स्ट लेयर होती है दैट इज योर स्टोरेज। ये सिर्फ कनेक्शन स्ट्रिंग है। इस कनेक्शन स्ट्रिंग को ट्रांसफॉर्मेशन करते हो और उस ट्रांसफॉर्मेशन से पास होते हुए ये आपके वेयरहाउस या स्टोरेज में जाके बैठ जाता है डेटा। ठीक है, अब इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आप चाहो तो ट्रांसफॉर्मेशन मत करो, जैसा है वैसे पड़े रहने दो और सीधा डंप कर दो, लोड कर दो। ठीक है, या फिर आप ये भी कर सकते हो, आप नंबर ऑफ टेबल्स को कम रखोगे पर सारी इंफॉर्मेशन स्टिल प्रोवाइड करना चाहते हो। जैसे अभी मेरे को 3 टेबल दिख रही हैं, पर मैं टेबल को इस तरह से अरेंज भी कर सकता हूँ जिसमें मेरे को सिर्फ एक टेबल रखनी पड़ेगी अपने स्टोरेज में और स्टिल उसके अंदर सब इंफॉर्मेशन होगी। जैसे सेल्स पर्सन को मैं इस ऑर्डर की टेबल में ला सकता हूँ मर्ज करके, लुकअप लगा के। ठीक है, क्योंकि कीज अवेलेबल, डायरेक्ट जॉइन लग जाएगा। सिमिलरली रिटर्न्स के साथ भी मैं ऐसा कर सकता हूँ। जितने भी ऑर्डर मेरे रिटर्न हुए हैं उसका स्टेटस मैं यहाँ पे ला सकता हूँ। वो तो लाया जा सकता है, यहाँ पे डंप कर सकता हूँ। अगर मैं सेल्स पर्सन की टेबल से सेल्स पर्सन ले लेता हूँ, क्योंकि लेने का एक ही तरीका है मेरे पास, इस कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू ही ले सकता हूँ। 2 डेटा सोर्स लेवल पे मैं कस्टम सीक्वल जैसा लिख के भी ला सकता हूँ, पर अल्टीमेटली काम वही बनेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं सेल्स पर्सन की टेबल से सेल्स पर्सन लेता हूँ और ऑर्डर्स की टेबल में भी डाल देता हूँ। एक बार मैंने ये काम कर दिया, ऑर्डर्स की टेबल में सेल्स पर्सन में ले आया, तो मेरा क्वेश्चन ये है, जो इंफॉर्मेशन ऑर्डर्स की टेबल में अब आ गई है जो कि पहले नहीं थी, तो क्या मैं पर्सन या पीपल की टेबल को अब मुझे स्टोर करना चाहिए मॉडल में? हाँ, स्टोर तो करना चाहिए कि रिफ्रेश करने के लिए, मतलब क्योंकि जो एंड यूजर मतलब जहाँ से डेटा सोर्स आ रहे हैं वहाँ पे तो पीपल कोई भी चेंजेस होगा तो वो इसी में टेबल में। फ्रॉम रिफ्रेश पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कनेक्शन है पीपल की, ये तो चाहिए ही चाहिए मुझे रिफ्रेश पॉइंट ऑफ व्यू से। पर लोड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर ये पर्सन की टेबल को अगर मैं ऑर्डर्स की टेबल में अवेलेबल करवा दे रहा हूँ
मतलब पीपल के टेबल से फ्लो होकर ऑर्डर्स की टेबल में पर्सन चले गए लुकअप लगा के। हाँ ठीक है, यहाँ तो आ गए, आ गए। लुकअप लगा के आ गए, यहाँ पे हम्म, भी हो गए, यहाँ पे तो ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑर्डर्स की टेबल में भी मैंने अवेलेबल करवा दिया लुकअप लगा के। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है और पीपल के टेबल में भी अवेलेबल है, रिपीट कर रहा हूँ अभी। ओके, सो क्वेश्चन इज, इस टेबल को मैं लोड करना चाहिए मुझे? अगर ये टेबल मेरी पूरी की पूरी कॉलम की फॉर्म में इस टेबल में अगर अवेलेबल है, एक इंफॉर्मेशन सीधा कहूँ तो आपके पास 2 टेबल है, दोनों सेम नंबर ऑफ कॉलम्स और रिकॉर्ड्स कंटेन करते हैं, तो क्या दोनों को आपको स्टोर करना चाहिए कि एक को करना चाहिए? रिपोर्टिंग और ऑप्टिमाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही को स्टोर करना चाहिए फिर तो, अगर एक हाँ, ही एक ही करना चाहिए, क्योंकि भाई काम तो हाँ। एक से भी हो जाएगा, दोनों को क्या जरूरत है? हाँ 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 है ना? तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर पर्सन को ऑर्डर्स में अगर अवेलेबल करा दिया जाता है तो पीपल की टेबल को मेरे को स्टोर करने की जरूरत नहीं है, बस एक कनेक्शन स्ट्रिंग की जरूरत इसलिए पड़ जाती है क्योंकि मैं पावर क्वेरी का यूज कर रहा हूँ इस ऑर्डर की टेबल में सेल्स पर्सन को कॉलम को अवेलेबल कराने के लिए। करेक्शन स्ट्रिंग कैसे बनेगा? अच्छा, कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए तो सिंपल, हम जैसे लुकअप वगैरह ये गेट डेटा करते हैं, यूआई का यूज करते हैं, ये कनेक्शन स्ट्रिंग यही बना देते हैं। जैसे मैंने मर्ज किया अभी इसको यूज करके, तो कनेक्शन बन गया इनके बीच में। सॉरी वो नहीं है, वो तो इंटरनल कनेक्शन कह सकते हो। ओके, और इसकी टेबल में गए, अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ में तो कोई रिलेशन तो है नहीं। है। क्वेरी पे गया, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया आपका पीपल का टेबल, देन रीजन, कॉमन फील्ड पकड़ेंगे, कॉलम नेम अलग हो सकते हैं, सेम होने की जरूरत नहीं है, डेटा आइटम सेम होनी चाहिए बस। तो मतलब ये कनेक्शन स्ट्रिंग बन रही है हमारी, यही बोलो ना आप? हाँ, तो इंटरनल मर्ज हो रहा है। हाँ, अगर मैं इसको रिफ्रेश तो लेती हूँ और मैं इसका लोड हटा देती हूँ, क्या होगा? बस मेरे को ये लास्ट क्वेश्चन है। मैंने पीपल का लोड हटा दिया तो क्या होगा? पीपल का अगर आप लोड हटा देते हो तो ये स्टोर नहीं होगा मॉडल के अंदर। मॉडल और पावर क्वेरी को अलग अलग समझिए, एक नहीं है। पावर क्वेरी इज लाइक योर पाइपलाइन, जिसमें से आपका वाटर फ्लो करेगा, पीने का पानी फ्लो करेगा, ठीक है। और मॉडल इज योर पानी का टैंक, ज्यादा हिंदी आ रही है, ठीक है। अब पाइपलाइन और कैसे और मतलब हम पाइप से पास ही नहीं करेंगे वाटर, तो टैंकर में फिल नहीं होगा। यस यही हो गया ना मीनिंग। तो मैंने पीपल को पहले ही हटा दिया, तो वहाँ पे पीपल लोड नहीं होगा। और अगर फॉर एग्जांपल पीपल लोड नहीं हुआ और मेरे को 3 ही मेरे टेबल्स दिख रहे हैं, मतलब 2 टेबल्स दिख रहे हैं, ऑर्डर और रिटर्न फॉर एग्जांपल मेरे मॉडल में, तो मेरे को ऑर्डर्स में मेरा जो एक कॉलम मैंने क्रिएट किया था मर्ज वाला, वो मुझे कैसा दिखेगा? मैंने हटा दिया लोड, पीपल का लोड ही नहीं हुआ, करेक्ट, वो एरर देगा, वो वाला कॉलम एरर देगा। हाँ, वो एरर देगा। या ठीक है, टैंकी से बहुत अच्छा एग्जांपल आया। मान ले आपकी छत पे वाटर टैंक लगे हैं। मुझे एक और अच्छा एग्जांपल आया। अच्छा, सिंपल सी चीज है, हम अपने घर में रहते हैं, स्विच ऑन करते हैं, लाइट जला देते हैं, हाँ। तो करंट तो फ्लो हो रहा होता है ना पीछे, तो जब स्विच ऑन करते हैं तभी लाइट जलती है, हाँ, राइट। तो इसका मतलब यही है कि रिफ्रेश तो होगा पीछे से, जैसे करंट पीछे चल रहा है तो रिफ्रेश तो होगा, लेकिन जब हमें यूज नहीं होता तो हम उसको बंद कर देते हैं लाइट को, सिंपल। स्विच बंद कर देते हैं तो लाइट बंद हो जाती है। That is something which we can relate to that example. तो वाटर टैंक का एग्जांपल दोबारा दे रहा हूँ, ठीक है। पाइप का यूसेज क्या है? एक कनेक्शन बनाता है जिससे पाइप पानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूवमेंट करता है, करेक्ट। तो पावर क्वेरी वही करता है। पावर क्वेरी कनेक्शन स्ट्रिंग बना देता है जिससे वाटर ट्रांसफॉर्म हो सकता है, लाइक उसमें आप चाहो तो आज टेक्नोलॉजी भी आ गई है, पाइप में ही वाटर फिल्टर हो जाता है, ठीक है। तो वही ट्रांसफॉर्म हो रहा है पानी पाइपलाइन के अंदर ही। उसके बाद एक जगह पर डंप होता है। तो मैं मान लेता हूँ रिटर्न्स का मेरा एक टैंक है, ऑर्डर्स का एक टैंक है और पीपल का एक टैंक है, ठीक है। ये मेरे छत की टंकी पे लगा हुआ है और इन तीनों ही टैंक से मैं अलग अलग टाइप का पानी ले सकता हूँ। एक से नहाने का पानी ले सकता हूँ, एक से पीने का ले सकता हूँ और एक से कपड़े धोने का या बर्तन धोने का पानी ले सकता हूँ। अलग अलग इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ। या मैं ऐसा करता हूँ इन तीनों ही टंकी का पानी एक बड़ी टंकी में स्टोर करवा देता हूँ। और वो अब बड़ी टंकी में स्टोर कराने का मतलब कि मेरे को क्योंकि मैं कनेक्शन स्ट्रिंग तो तोड़ नहीं सकता, जैसी बन गई है वो बन गई है। 3 टंकियां अभी भी हैं,
कनेक्शन स्ट्रिंग अभी भी वैसे का वैसा, पाइपलाइन वैसी की वैसी बनी हुई है। एक कॉमन टंकी बनाने के लिए इन तीनों टंकियों से मेरे को एक और कनेक्शन बनाना पड़ेगा, एक बड़ी कॉमन टंकी की तरफ। तो इसका मतलब ये तीनों टंकी भी रहेंगी और एक कॉमन टंकी जो बड़ी वाली है जिसमें सारा पानी जा रहा है वो भी रहेगी। तो स्टोर कहाँ हुआ इस केस में? स्टोर कहाँ हुआ है टंकी के केस में? एक बड़ी टंकी के अंदर स्टोर हुआ, पर कनेक्शन स्ट्रिंग अभी भी बनी रही तीनों की। तो ये कुछ इस तरह से बन के आएगा, अभी रिलेट नहीं कर पा रहे तो अभी बता दूं। मैं एक पहले करता हूँ, एक मेन टंकी बना देता हूँ इधर। हम क्या करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं इसका रेफरेंस बना लेता हूँ। इसका मतलब ऑर्डर्स की टेबल से डेटा डायरेक्ट मेरे ऑर्डर्स 2 में फ्लो कर रहा है। दिस इज माय मेन डेटा और मेन टंकी कहते हैं इसको। मैं यहाँ पे गया, एक मैंने इसको अलग से फोल्डर में डाल दिया, मेन टैग, इसको ऐसे कहता हूँ मैं, ठीक है। इसके अलावा दिस इज माय, इसको रीनेम नहीं लेता। अब क्या करता हूँ, मेन टैंक हो गया ये मेरा, इसके अंदर मेरा ऑर्डर्स का सारा डेटा है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, रिटर्न्स की टेबल से ये पता लगाता हूँ कितने ऑर्डर्स मेरे रिटर्न हो चुके हैं। मैं यहाँ पे आया, दिस इज माय मेन टैंक जिसमें मैं इन तीनों कनेक्शन स्ट्रिंग से पानी पास कराऊंगा। अभी तीनों कनेक्शन स्ट्रिंग की तरह मतलब एज अ स्मॉल टैंक्स ले लो, इन तीनों से पानी फ्लो कराऊंगा इसके अंदर मेन टैंक में। अभी क्या कर रहा है, कहाँ से पानी ले रहा है, ये इज टेकिंग वाटर फ्रॉम माय ऑर्डर्स टेबल। अब मैं क्या करूंगा, मर्ज क्वेरी लगाऊंगा रिटर्न्स की टेबल से, हाँ रिटर्न्स की टेबल से इसमें से वाटर लूंगा। अब मैं ऑर्डर आईडी ओके किया मैंने, यहाँ पे गया, मैं सिर्फ रिटर्न लूंगा और कुछ नहीं लूंगा। देखा, एग्जांपल देने के लिए कितना डिटेल में जाना पड़ता है। अब पीपल की टेबल में जाऊंगा, वहां से सेल्स पर्सन लूंगा। अरे क्या कर रहा हूं मैं, रीजन, यहाँ पे आए, रीजन इस पे ओके किया, यहाँ पे आए, रीजन हटाया और ओके किया। अब मैं पे रिटर्न आ गया और पर्सन आ गया। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि अगर इन छोटे छोटे 3 टैंक से आपका पानी फ्लो होकर मेन टैंक में जा रहा है, ठीक है, और पानी की आपकी सारी जरूरत है, अब आप मेन टैंक से पूरी कर सकते हो, तो आपसे मैं सवाल ये पूछता हूँ कि जो छोटी मिनी टैंक्स हैं आपके, उसकी क्या जरूरत रह गई जब आप सारा काम मेन टैंक से ही कर लेते हो? हाँ जी बताइए। सोर्स तो हमारे पास स्मॉल, हाँ तो हमारे पास वो टेबल है ना, रिटर्न और पीपल, एज अ सोर्स, मेन टेबल मेन टैंक सोर्स है हमारा। हाँ, सो रिटर्न्स, ऑर्डर्स और पीपल ये मेरे सोर्स की तरह काम कर रहे हैं। पर सोर्स किसके हैं, पर डेटा सोर्स किसके बने, मेन टेबल के बने ना। मेन टेबल अकेले कुछ नहीं कर पाएगी जब तक इन टैंक से पानी इसमें फ्लो नहीं करेगा, राइट। अगर इनमें कोई दिक्कत आई तो इसमें दिक्कत आ जाएगी। पर अब यहाँ पे इस टेबल के लिए या इस टैंक के लिए ये एज अ सोर्स काम कर रही है, तो इसका मतलब जब सारा काम मेरा यही कर दे रहा है तो इसकी क्या जरूरत मेरे को, मतलब ये मेरा स्टोरेज बन जाएगा, ये मेरा कनेक्शन बन जाएगा, क्योंकि ये कनेक्शन की तरह पाइपलाइन की तरह वर्क कर रहा है, पानी यहाँ से निकल के यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे स्टोर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे। अब यहाँ से पानी डायरेक्ट निकल के इसमें जाएगा और इससे निकल के डायरेक्ट मेन में चला जाएगा, तो ये एज अ ब्रिज की तरह काम करेगा, ये स्टोर नहीं करेगा कुछ। अब तो जब ये स्टोर नहीं करेगा तो मैं इसको लोड क्यों कराऊं, इससे स्टोरेज भी क्यों बनवाऊं? अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन में भी करवाऊंगा, क्योंकि ये ऑप्टिमाइजेशन का भी पार्ट है। बताइए बताइए। जैसे हाँ, हमारे पास जैसे मेन टेबल आपने बनाया और ऑर्डर टेबल से जैसे हमने मर्जिंग करा है और पीपल से भी करा मर्जिंग। अगर हमारे पास पीपल टेबल में कोई कॉमन कॉलम नहीं है मेन टेबल से, तब हम पीपल से जो सेकंड कॉलम है वो कैसे पिक करेंगे अगर हमारे पास कोई कॉमन कॉलम ही नहीं है? तब नहीं हो पाएगी। तो कोई वे नहीं, तो वे क्या तरीके या कुछ और कोई और तो फिर उस केस में बिजनेस बताएगा कि क्या हो सकता है, क्योंकि जब आपको कोई कॉमन फील्ड नहीं मिलेगी तो आप अपनी तरफ से डिसीजन तो ले नहीं पाओगे कि भैया ये कैसे रिलेट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, वो तो फिर बिजनेस हो सकता है, फिर इंडेक्सेट कर लेना। ओके, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है जो राइट, हाँ जी बताइए। दूसरा क्वेश्चन है जैसे राइट साइड में अप्लाइड स्टेप्स हैं,
हाँ अभी हाँ तो ये लिमिटेड अप्लाइड स्टेप्स हैं। हाँ अगर कभी सिचुएशन होती है हमारे पास कि काफी मतलब अप्लाइड स्टेप्स काफी हो जाते हैं, तो इससे कुछ रिपोर्ट में स्लोनेस में इशू आता है या फिर नहीं आता है? हाँ या उसके ऑप्टिमाइजेशन में जब हम रिपोर्ट रन करेंगे तो कुछ इश्यूज हाँ, आते हैं अप्लाइड स्टेप्स अगर इंक्रीज होते जाएं? आता है ट्रांसफॉर्मेशन भी रिपोर्ट स्लो कर देती है। ये बताऊंगा, तो ये हमें जरूर जब भी ये बताऊंगा, ये पावर क्वेरी में जब भी ये प्रोसेस करना है, क्या हाँ क्या हाँ सिनेरियोज देख देख के वर्क यस, करना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। ये मैं और ऑप्टिमाइजेशन जो भी लेफ्ट साइड में, हाँ जी हाँ जी, लेफ्ट साइड में जो हम मेन टेबल ये क्रिएट करा हमने, जैसे यहाँ पे भी अगर हम टेबल इंक्रीज करते जा रहे हैं और ये मॉडलिंग कर रहे हैं जो, हाँ। इससे भी इशू फर्क पड़ता है रिपोर्ट स्लोनेस में, या फिर कोई इशू नहीं होता? नहीं, इससे इशू नहीं होता है। इशू इस बात से होता है ट्रांसफॉर्मेशन में टेबल को यूज कितना करते हैं। जितना आप मर्ज यूज करेंगे उतना आप स्लो कर देंगे सिस्टम को, जितना आप अपेंड करेंगे उतना आप स्लो कर देंगे सिस्टम को। तो मर्ज और अपेंड कम से कम करें पावर क्वेरी में। एज इट इज जैसे हमारे पास टेबल्स आ रहे हैं उसको एज इट इज यूज करना है मींस। हाँ बिल्कुल, स्टार स्कीमा का यूज करना जरूरी है। ठीक है, ओके। तो जैसा मैंने बताया कि अब ये तीनों से डेटा फ्लो होके मेन में जा रहा है, तो इसका मतलब मैं तीनों की जरूरत ही नहीं है मुझे, क्योंकि सारा डेटा तो मेरे को मेन में मिल रहा है। तो इसका मैं लोड बंद कर देता हूँ, मतलब इसको अलग से स्टोरेज की तरह यूज ही ना करूँ, इसको ही बंद कर देता हूँ। स्टोरेज की तरह यूज नहीं करूंगा इसको ही बंद कर दिया, स्टोरेज की तरह यूज नहीं करूंगा। और ये पर हम करेंगे मेन टेबल में हाँ, एनेबल लोड। अभी काम होगा मेरा रिपोर्टिंग का, वो सारा मैं मेन टेबल से ही कर सकता हूँ। इसकी जरूरत ही नहीं है लोड करने की, मतलब स्टोरेज करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एज अ पाइपलाइन वर्क करेंगे, इसमें से वाटर फ्लो होगा और मेन टेबल में जाएगा। अगर ये पाइपलाइन ही मैं रास्ते से हटा देता हूँ तो इसमें वाटर जा ही नहीं पाएगा, तो इसको हटा नहीं सकता, इसको रखना पड़ेगा। और पाइपलाइन इंटैक्ट बनी रहनी चाहिए, मतलब वो रिफ्रेश भी होनी चाहिए, राइट। अगर ये रिफ्रेश नहीं होगी, अगर ये बंद हो जाएगा, इसका मतलब कोई ब्लॉकेज आ गया है पाइपलाइन में, इसलिए इसे डेटा यहाँ नहीं जा पा रहा। या मतलब जो चला गया वो चला गया, इसका मतलब जो चला गया वो चला गया, जो स्टोर हो गया वो हो गया। नया डेटा फ्लो हो इसके लिए इसमें कोई ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए, मतलब ये रिफ्रेश ऑलवेज अनेबल रहना चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ। अब मुझे रिलेशनशिप की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास एक ही टेबल है, मेन टेबल। अब जितने भी रिपोर्टिंग में सारी यहीं से कर सकता हूँ, एक ही टेबल से। ये सारे कॉलम आ गए, पर्सन भी आ गया, रिटर्न भी आ गया, मतलब मेरे लिए ये ज्यादा इजी हो जाएगा, रिलेटिवली बहुत इजी। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं रिपोर्ट ऑप्टिमाइजेशन करवाऊंगा, तब भी ये दोबारा इसे टच करूंगा, मतलब रिपोर्ट ऑप्टिमाइजेशन में कैसे हेल्प करता है वो बताऊंगा। ठीक है, इसका यूज वैसे उसी एरिया में जाता है, ऐसे यूज नहीं है इसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, ये चीज शायद आपको पता होंगी। क्रिएट फंक्शन अभी नहीं कराऊंगा, ये लास्ट में है। पैरामीटर भी नहीं कराएंगे, एडवांस एडिटर देखते हैं, अभी आता है तो करवाता हूँ। ओके, डुप्लीकेट और रेफरेंस में फर्क बताइए। हाँ जी, कौन बताना पसंद करेगा डुप्लीकेट और रेफरेंस में क्या फर्क होता है? अगर नहीं पता है तो बता देते हैं। अगर आप एक्सेल से फेमिलियर हैं तो एक्सेल में भी रेफरेंस और डुप्लीकेसी का कॉन्सेप्ट है, इवन हर सिस्टम में होता है वैसे तो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राकेश, इसको उठाया और यहाँ पेस्ट कर दिया, राकेश यहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ पे इक्वल टू किया, यहाँ पे भी राकेश अवेलेबल, तो दोनों जगह तो राकेश अवेलेबल है, पर एक जगह पे हार्ड कोडेड है, मतलब सब कुछ है, पूरा इंटैक्ट है, मतलब ये राकेश का सेल दिस वन एंड दिस वन इज इंडिपेंडेंट नाउ, मतलब इसको मैं डिलीट कर दूंगा, यहाँ से हटा देता हूँ, तो इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, नहीं। बट बॉटम वन दिस वन इज रिलेटेड टू दिस, मतलब अगर किसी वजह से इसको कुछ हो जाता है तो ये नीचे वाला हट जाएगा, पीछे वाले में दिक्कत आ जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेट एंड रेफरेंस। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, ऑर्डर्स की टेबल तो यहाँ थी ही मेरे पास। जब डुप्लीकेसी की बात करते हैं तो आप सब कुछ कॉपी कर ले रहे हैं उसका, राकेश। अब इसको अगर डुप्लीकेट करना हो तो आप यहाँ पे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करते हैं, यहाँ पे भी वही करते हैं, आप कंट्रोल कॉपी और पेस्ट कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो डुप्लीकेसी, और देखो सारा कॉपी हो गया क्योंकि ये से रिलेटेड था। मैं भी हटा,
एक मिनट दोबारा कर देता हूँ, ये इस पे गए। इसका एक और यूज केस बताऊंगा, रुकिए। और ये अच्छा यूज केस है। आप लोगों ने पावर क्वेरी एक्सेल में यूज करी है? अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मेरी ऑर्डर्स की टेबल है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पे 2 ऑर्डर्स की टेबल हो, एक में सिर्फ ऑर्डर आईडी हो और सेल्स हो बस। या फिर ऐसा समझिए, चलिए एक यूज केस के साथ समझाते हैं, शायद वो बहुत इजी पड़ेगा। ओके, हम क्या करते हैं, हम कैटेगरी और सब कैटेगरी ले लेते हैं और सेल्स ले लेते हैं। बाकी कॉलम की मुझे जरूरत नहीं, मैं हटा देता हूँ। मैं इसे ग्रुप बाय कर लेता हूँ। यहाँ सम पे आ गया, मैं यहाँ पे गया, सेल्स ले लिया और इसको कहता हूँ टोटल सेल। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। यहाँ पे फर्नीचर दिख रही है मेरी और यहाँ पे सब कैटेगरी दिख रही है। इसका मतलब फर्नीचर के अंडर जो सब कैटेगरीज है उनका टोटल आ रहा है, पर मैं एट द सेम टाइम फर्नीचर का टोटल भी इनके सामने देखना चाहता हूँ। ठीक। सिमिलरली ऑफिस सप्लाईज का जो टोटल है, जो डिफरेंट सब कैटेगरी में बट गया है, उसका टोटल मैं यहाँ देखना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं लाऊं कैसे उसको? जैसे मैं यहाँ पे लेके आया, सब कैटेगरी वाइज ले आया, मैं यहाँ पे जाता हूँ, राइट क्लिक किया मैंने, ग्रुप बाय किया, यहाँ पे ऑपरेशन में जाके सम किया मैंने और यहाँ टोटल सेल्स पे चला गया। इसको भी मैं टोटल सेल्स कह देता हूँ। अगर ये ग्रुप बाय ना समझ में आए तो कोई इशू नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ठीक है, अब फर्नीचर टोटल तो सेल आ गया मेरे पास, पर मेरा सब कैटेगरी तो चला गया। मतलब जो पहले जो सेट था मेरा, मतलब मुझे ये तो रखना ही है, ये सारे कॉलम तो चाहिए ही चाहिए। इन एडिशन टू दैट आई आल्सो नीड वन मोर कॉलम जो टोटल लिखा है बाय कैटेगरी, नॉट बाय सब कैटेगरी। मतलब फोर्थ कॉलम और चाहिए, जो मैं ऐसे तो ला नहीं सकता। ठीक है, तो क्या हो अगर मैं ये टेबल भी हो मेरे पास और ये टेबल भी हो, तो एक मर्ज करके मैं ला नहीं सकता इधर? मतलब अच्छा, वो कोई नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाली टेबल और ये वाली टेबल, मतलब जिसमें सब कैटेगरी नहीं है एक वो वाली टेबल, और जिसमें सब कैटेगरी है वो वाली टेबल। करेक्ट, बिल्कुल सही समझे। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें 2 तरीके हैं, हम डुप्लीकेट कर सकते हैं और रेफरेंस कर सकते हैं। अगर मैं रेफरेंस कर दूं, ठीक है, रेफरेंस करने से ये हो गया कि ये जो सेकंड टेबल है जो रेफरेंस है, कर देते हैं रेफरेंस कर देता हूँ। अब ये जो टेबल है, दिस नाउ इज डिपेंडेंट ऑन ऑर्डर्स टेबल। बिल्कुल। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं यहाँ पे कोई चेंज करूंगा, अब वो डायरेक्टली इसको इम्पैक्ट कर देगी। मतलब इसमें क्योंकि इस टेबल के लिए जो सोर्स है, जो डेटा का सोर्स है, इज ऑर्डर्स टेबल, जो कि ऊपर आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार में। ठीक है, अब मैं ऑर्डर्स में टेबल में जाता हूँ। अब मैं यहाँ से अगर मैं कैटेगरी डिलीट कर दूं, तो वो यहाँ से भी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है इससे। तो मैं सर रेफरेंस टेबल कब यूज करनी चाहिए? ऐसे तो मैं डुप्लीकेट यूज करना चाहिए हर जगह। हाँ, तो अब ये देखिए ना, अब ये तो रेफरेंस बन गई, और मैं यहाँ से तो डिलीट कर सकता हूँ, ये तो रेफरेंस है। इसका इम्पैक्ट उल्टा थोड़ा जाएगा पीछे, वैसे पीछे नहीं जाएगा। ओके, ठीक है। तो मैं यही कर सकता हूँ इधर, मैं यहाँ पे ग्रुप बाय लगा सकता हूँ। यहाँ पे गया, सम किया, पकड़ा इसको, सम किया, यहाँ पे आए, बाय कैटेगरी कर दिया, इसको ओके कर दिया, ये बन गया। ये भी है और ये भी है। अब यहाँ पे मैं मर्ज कर सकता हूँ और वहां से डेटा उठा सकता हूँ। दिख क्यों नहीं रही कैटेगरी? अरे क्यों नहीं रही? तो दिक्कत हो गई उसमें, लगता है नीचे। अरे मेरी गलती, सॉरी। मैंने, अगर मैं यहाँ को चेंज करूंगा तो यहाँ पे असर हो जाएगा ना उसका, मतलब यहाँ पे मैं मर्ज नहीं लगा सकता। अच्छा, यहाँ मर्ज नहीं लगा सकते क्योंकि वहां पर तो एक कॉलम हट गया ना सब कैटेगरी वाला। इसमें मर्ज मैं इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि ये जो टेबल है ये वाली, ये इस पे डिपेंडेंट है। अगर मेरी क्वेरी में ही चेंज आ जाएगा तो इसका तो फाउंडेशन ही टूट गई ना। अच्छा, आपने इस पे चेंज कर दिया रेफरेंस में, लेकिन ऑर्डर वाली तो एज इट इज वैसे ही है।
हाँ, हम्म। आपको रेफरेंस तो समझ में आ गया? नहीं, रेफरेंस मुझे समझ में आ गया, लेकिन अभी आप मर्ज क्यों नहीं लगा सकते? नीचे क्यों नहीं लिखा हुआ आ रहा था? क्योंकि आपने ऑर्डर तो वैसे ही है, अच्छा मर्ज में चेंज किया। अच्छा, ये जो टेबल है इसको हम पहले ले लें, अगर रेफरेंस वाली को अगर हम पहले ले लें हाँ। और मेन वाली बाद में ले लें, ऐसा कर सकते हैं? नहीं, तब merge अभी आपस में रिलेट हो चुकी हैं, कनेक्टेड हो चुकी हैं। इसका जो आउटपुट सॉरी इनपुट है, ऑर्डर्स का जो इनपुट है ये यहीं से आ रहा है, ठीक है। अब इसका जो आउटपुट मैं उठा के इसमें डाल दूंगा तो ये लूप बन जाएगा, फिर सर्कुलर डिपेंडेंसी बन जाएगी। मतलब इससे जो आउटपुट निकला वो यहाँ गया, ठीक है, इसके लिए इनपुट हो गया। अब इसके आउटपुट को अगर मैं यहाँ डालूंगा तो घूम के इसका जो आउटपुट बनेगा वो इसके लिए दोबारा इनपुट नहीं बन जाएगा। तो लूप बन गया ना ये। तो इसलिए रेफरेंस ऐसे यूज नहीं कर सकता, तो इसको मैं हटा देता हूँ। इसकी जगह पे अब मैं इन दोनों को इंडिपेंडेंट कर देता हूँ ताकि एक दूसरे से ये कनेक्टेड ना रहे। तो मैं राइट क्लिक करके इसे डुप्लीकेट कर देता हूँ। अब ये इंडिपेंडेंट हो गया है, मतलब इसमें अब मैं कुछ चेंज करूंगा तो दूसरे को इम्पैक्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब मैं ऑर्डर्स की टेबल में जाऊंगा, इसको मैं कहता हूँ डुप्लीकेट पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, ग्रुप बाय करता हूँ, यहाँ पे टोटल सम कैटेगरी का टोटल सेल्स। अब देखिए ये वैसे का वैसा बना हुआ है। यहाँ पे मैं मर्ज करूंगा, यहाँ पे मैं आऊंगा, अब मैं ले सकता हूँ क्योंकि अभी इंडिपेंडेंट है। और ओके, यहाँ पे मैं आया, हटाया, सिंपली ओके। अच्छा मैं एक चीज बता दूं, मैं ये चीज पहले क्लियर कर देता हूँ। अगर ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, अगर सच बता रहा हूँ, अगर ये लग रही है जो एडवांस पावर क्वेरी बताऊंगा ना तो और समझ नहीं आएगा उसको, ठीक है। उसके ऊपर जब मैं डैक्स में ले जाऊंगा ना, वहां समझाऊंगा तो वो तो और समझ नहीं आएगा। मतलब उसमें आपको दो चीज बहुत ही कंप्लीट करेगी, एक फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, एक रॉ कॉन्टेक्स्ट। ये लिटरली दिमाग घुमा देता है। रेफरेंस और डुप्लीकेसी का जो यूज है वो तो समझ में आया? आ गया। तो जब आप रेफरेंस बनाते हो, सो जो रेफरेंस से जो क्वेरी बनती है वो आउटपुट सॉरी उसका जो इनपुट होता है वो मेन टेबल से आता है। रेफरेंस इज जस्ट द कनेक्शन बिटवीन योर मेन टेबल एंड द रेफरेंस टेबल। दोनों आपस में रिलेट हो जाती है, ठीक है, डिपेंडेंट है। वन रेफरेंस इज डिपेंडेंट ऑन योर मेन क्वेरी। जस्ट लाइक वो पिछला वाला एग्जांपल जो आप बता रहे थे पानी की टंकी वाला, वैसे ही है। हाँ ठीक है। पर जब आप डुप्लीकेट करते हो तो डुप्लीकेसी में क्या होता है, आप सब कुछ कॉपी कर लेते हो उसका। जैसे यहाँ पे डुप्लीकेट किया तो आप देखोगे इसने सोर्स लिया, इसने नेविगेशन लिया, प्रोमोट हेडर, वो सारे स्टेप ले लिए जो इसके अंदर थे। ये देखिए सोर्स, नेविगेशन, सब कुछ। हाँ ये बात के नहीं लेगा क्योंकि बात का हमने उससे पहले किया था डुप्लीकेट। इसका मतलब ये अलग से रिफ्रेश होगा और ये अलग से रिफ्रेश होगा। ये दोनों ही अलग अलग एंटिटी बन गई है, इंडिपेंडेंट है। डुप्लीकेसी का मतलब है कॉपी कर लो पूरा का पूरा आप उसको, और रेफरेंस का मतलब है कि एक के आउटपुट को ले रहे हो और दूसरे के एज अ सोर्स यूज कर रहे हो। जैसे ये है, ये इसका आउटपुट है। अब इस आउटपुट पे अगर आपको फर्दर कुछ करना है तो आप इस पे राइट क्लिक कर लो और रेफरेंस बना लो। ये रेफरेंस बन गया। अब इसके ऊपर आप जो चाहे करना चाहे कर लो, पर उसे घुमाना मत, पीछे मत ले जाना, नहीं गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। जब आप डुप्लीकेसी देखते हैं, डुप्लीकेट देखते हैं तो ये सारा कोड उठा लेता है, सारा कोड, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ता जो उसमें था पहले। जिस टाइम जब आप उठाओगे, जब आप डुप्लीकेट करोगे तब तक का सब कुछ उठा लेता है। जैसे वो कॉपी कर लेगा, कॉपी का मतलब ये होता है कि अब उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं रह गई। लाइक स्कूल में नकल मारते हैं हम, कॉपी करने के बाद जब कॉपी हो गया तो उसके बाद क्या आपको दोबारा दिखना तो ना होता है। या मान लो आपने अपने कॉपी की नकल मारी, उसने एक सॉल्यूशन निकाला, अपने कॉपी नकल मार ली, अब अपने पेपर सबमिट कर दिया, और जिससे कॉपी मारी थी उस भाई ने क्या किया, उसको लगा ये तो गलत आंसर लिख दिया मैंने, उसने पूरा डिलीट मारा, मतलब कट मारा उसको और फिर से सॉल्यूशन लिखने लग गया। तो क्या आपके पेपर में चेंज हो जाएगा क्या ऑटोमेटिक? नहीं होगा। नहीं होगा ना। ओके, इन द सिमिलर फैशन ये बिल्कुल ये डुप्लीकेट है, ठीक है। पर रेफरेंस के केस में क्या हुआ,
मैंने रेफरेंस किया, मतलब आप देखोगे ना यहाँ पे एक पिन का आइकन दिख रहा है यहाँ पे, यस ठीक है। पिन का आइकन का मतलब ये हो गया मेरी तो ये सेकंड क्वेरी है, ये इससे जुड़ चुकी है, सॉरी ऑर्डर्स की टेबल से जुड़ चुकी है। यहाँ पे कोई चेंज आएगा तो यहाँ पे भी आएगा, ठीक है, जुड़ गई है, एक लिंकेज हो गया है, एक वायरिंग हो गई है, या एक समझ गया। में भी जुड़वा भाई कह सकता हूँ मैं। ओके, जो ठीक भी है। चेंजेस ऑर्डर्स टेबल में आएंगे वो ऑर्डर्स 2 में सिमिलरली रिफ्लेक्ट होंगे। हाँ, वो reflect reference है। होगा। मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें But नकल duplicate copy- में- copy- हाँ डुप्लीकेट, हाँ नकल वैसे हो जाती है, मतलब आप नकल करो, मींस जैसे यहाँ चेंज आएंगे वो चले ऑर्डर्स टेबल में हाँ। ऑर्डर्स टेबल में जो भी नया डाटा आएगा, कुछ भी चेंजेस आते हैं तो वो ऑर्डर्स 2 में आ जाएंगे, यस रेफरेंस टेबल में आ जाएंगे, बट नॉट इन डुप्लीकेट। डुप्लीकेट में जो फर्स्ट टाइम डुप्लीकेट हुआ था सिर्फ वही सेम डाटा सेट रहेगा, कुछ भी हाँ। अपडेट नहीं होगा। करेक्ट ओके, करेक्ट, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया हुआ। अच्छा, एक और यूज केस दिखाता हूँ, ये वैसे इतना हर बार नहीं काम आता है, कुछ कुछ केसेस में काम आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, the query orders duplicate cannot be deleted because it is being referenced by another query orders। ये जो क्वेरी है ये रेफर हो रही है यहाँ पे, कैसे? क्योंकि हमने मर्ज लगाया है, ठीक है, ऑर्डर्स डुप्लीकेट से मर्ज लगाया है, तो इससे आउटपुट निकल रहा है और वो यहाँ जा रहा है, सॉरी यहाँ से आउटपुट ले रहा है, यहाँ पे इनपुट बन गया और ये टोटल सेल्स बाय कैटेगरी आ रही है। तो मतलब इसको डिलीट करने का मतलब है मैं इसको खराब कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसलिए इसे मेरे को ये डिलीट करने नहीं दे रहा, मना कर रहा है कि आप डिलीट नहीं कर सकते। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आपको ये स्टेप और ये स्टेप भी डिलीट करना पड़ेगा, अब ये आपको डिलीट मारने देगा। चलिए एक छोटा सा यूज के तौर बताता हूँ। देखिए ये तीन क्वेरीज बना दी है, इसको मैं पावर BI में लोड कर देता हूँ, लोड हो रही है, इसको बैक चलाते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये तो टेबल बन गई, ठीक है, अब आप ऐसा अज्यूम करिए कि आपने इस पर्टिकुलर पावर BI की फाइल में सब कर चुके हो, मॉडलिंग कर ली, ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडलिंग, कैलकुलेशन, विजुअलाइजेशन सब कर लिया, बट अब आपको एक और ऐसी रिपोर्ट बनानी है जहां पे आपको ये क्वेरी दोबारा रेफर करनी है, ये ट्रांसफॉर्मेशन दोबारा रेफर करनी है। तो अब क्या करोगे? बस पूरा नहीं चाहिए, किसी एक या दो टेबल को चाहिए, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए आपको, लाइक ऑर्डर्स टेबल चाहिए आपको, डुप्लीकेट बना देंगे। डुप्लीकेट तो बना देंगे, पर डुप्लीकेट जब हम बनाते हैं तो हम सेम पावर BI के अंदर करते हैं, सेम फाइल के अंदर। मेरे को दूसरी फाइल में चाहिए हो, मतलब कंट्रोल N कर देता हूँ, अब मेरे पे यहाँ पे एक और पावर BI की फाइल खुलेगी, तो मैं ऑर्डर्स को लेके इस वाले नए वाले पावर BI के अंदर डालना चाहता हूँ, तो कैसे कर सकते हैं? दोबारा से कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, इसका मतलब, राइट? वो मतलब सारी ट्रांसफॉर्मेशन दोबारा करनी पड़ेगी, वही मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। देख सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि हाँ रेफरेंस लेंगे, लेकिन वहाँ चेंज करो आप रेफरेंस और डुप्लीकेट सिर्फ सेम फाइल के अंदर कर सकते हैं, क्रॉस फाइल में नहीं कर सकते। ठीक है, पर एक चीज और कर सकते हैं आप क्या कर सकते हो बताता हूँ। कहाँ क्लिक किया आपने? एडवांस एडिटर में, ट्रांसफॉर्म में, ट्रांसफॉर्म डेटा पे मैंने क्लिक कर, ठीक है, क्लिक करते ही इसकी पावर क्वेरी एडिटर पे ले आया मेरे को। यहाँ पे 3 टेबल दिख रहा हूँ, मैं इन तीनों टेबल को राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। मेरी जो दूसरी पावर BI की फाइल थी ब्लैंक वाली, जहाँ पे कोई फील्ड नहीं है, मैं इसके ट्रांसफॉर्म एडिटर में गया, यहाँ पे राइट क्लिक किया और पेस्ट कर दिया, 3 हो गई, मेहनत करनी नहीं पड़ी, हो गया आसानी से। अब मैं इसे क्लोजर अप्लाई कर देता हूँ, अब दोनों फाइल में आ जाएगा डेटा मेरे पास। सही है ट्रिक? तो ये डुप्लीकेट बना है, ऐसे ये टेबल्स तो आगे, लेकिन हाँ ट्रांसफॉर्मेशन साथ है, ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडिफिकेशन करी थी वो सेम आ जाएगा या नहीं? हाँ पूरा आ चुका, देखो ना, यहाँ पे मैं ऑर्डर्स एक्सपैंड करता हूँ, 3 कॉलम आ रहे हैं, यहाँ पे भी 3 कॉलम आ रहे हैं, ये पूरा कॉपी हुआ है कोड के साथ, ये देखो, इसका मतलब विजुअल्स भी कॉपी हो जाएंगे क्या? हाँ हो जाते हैं,
मतलब नहीं, ऐसे जो कॉपी कर रहा हूँ उससे बैकग्राउंड का पावर क्वेरी का कंटेंट कॉपी होता है, विजुअल मॉडल वगैरह कॉपी नहीं हो रहा। अच्छा, जो कोई मार्जिन वगैरह कैलकुलेटर, करी वो तो नहीं हाँ जी, मैं पूछ रही थी कोई कैलकुलेटेड नहीं फील्ड्स बनी है या कोई मेजर हो हमारा बना, वो नहीं नहीं है? नहीं हो रहा है, ये सिर्फ पावर क्वेरी का है बैकग्राउंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपने क्या किया, ये है शॉर्टकट, पर आइडली में ये आइडली अगर हमें करना हो, अगर कॉपी पेस्ट का ऑप्शन ना हो, अगर स्टिल हमें करना हो, तो ये मेरी मेन फाइल है, मैं ऑर्डर्स की टेबल में जाऊंगा, ये वाले स्टेप हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन करी है और से ये टेबल आई है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन दोबारा ना करनी पड़े मुझे, और ये ट्रांसफॉर्मेशन को मैं ले जाकर किसी दूसरी फाइल में रखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर टेबल पर राइट क्लिक करूंगा, उसके एडवांस एडिटर पे चला जाऊंगा और इस पूरे कोड को कॉपी कर लूंगा ऐसे। उसके बाद इसको नीचे ले जाता हूँ, इसको भी नीचे रख देता हूँ। ये जो टेबल है, ये सेकेंडरी टेबल है, इसके ट्रांसफॉर्म डेटा में गया मैं, यहाँ पे राइट क्लिक किया मैंने, न्यू क्वेरी में गया, न्यू क्वेरी, ब्लैंक क्वेरी, इसके एडवांस एडिटर पे गया। अगर नहीं समझ में आता तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें यहाँ पे पेस्ट करके डन कर दिया, सारा डेटा आ जाएगा। तो अल्टीमेटली कॉपी पेस्ट से क्या हुआ, उसने कोड ही कॉपी पेस्ट किया और कुछ कॉपी पेस्ट नहीं किया, कॉपी पेस्ट किया। ये सेकंड मेथड है, एक था डायरेक्ट और एक था एडवांस एडिटर वाला। इसको आप कह सकते हो ये प्राइमरी मेथड है वैसे तो, जो कॉपी पेस्ट वाला है वो सेकेंडरी है, वो इजी है, ये प्राइमरी है। दोनों ऑप्शन से काम सेम हो रहा है ना? हाँ, एक ही चीज है, बैकग्राउंड दोनों का सेम है, कोड ही कॉपी होता है दोनों में। मेरा एक इस पे क्वेश्चन था कि जैसे मैंने पहले भी पूछा, अगर हम कुछ भी मर्जिंग करते हैं, अपेंड क्वेरीज करते हैं, तो ये वो भी रिफ्लेक्ट करता है हाँ कि ये देखो, नहीं करता? बिल्कुल करेगा। बिल्कुल। अभी देखो दिखाते हैं, ओके, और मान लेते हैं ये पीपल की टेबल है, सेल्स पर्सन को लेके मैं ऑर्डर्स में ले जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम गए, यहाँ पे मैं गया, पीपल, रीजन, ओके किया मैंने, यहाँ से आया मैं, रीजन हटाया, सेल्स पर्सन आ गए मेरे। अब मैं क्या करता हूँ, पीपल से सेल्स पर्सन निकल के ऑर्डर्स की टेबल में चले गए, बट ऑर्डर्स की टेबल में जो पर्सन है वो स्टिल पीपल की टेबल से तो आ रहा है, कनेक्शन स्ट्रिंग, राइट। मैं सिर्फ ऑर्डर्स की टेबल को राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ, पीपल की टेबल नहीं कॉपी कर रहा मैं। अब यहाँ पे सही ये नहीं है क्या, इसको बंद करते हैं, इसको भी किया, अरे कितने हैं, हाँ शायद ये है, इसको, अरे ये तो मर्जी क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ ये नहीं है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं लगनी चाहिए। हाँ, ये मर्ज है, इसको मैं क्लोज एंड अप्लाई कर देता हूँ, पहले होने जानी थी फिर दिखाता हूँ। अच्छा यहाँ से हट गया, ये वाली टेबल है, इस पर डिस्कार्ड कर देते हैं। ओके, यहाँ पे मैं गया, ये सारा डिलीट कर देता हूँ पहले, ठीक है, डिलीट कर दिया। अब जो मैंने कॉपी किया था मैं इसको पेस्ट करता हूँ, मैंने कॉपी किया था सिर्फ ऑर्डर्स, पर ये पेस्ट क्या करेगा, दोनों, क्योंकि कनेक्शन में है, कनेक्शन स्ट्रिंग का पार्ट है। क्यों, क्योंकि मर्ज बन चुका है, यहाँ मर्ज लगा है, तो मर्ज की डिपेंडेंसी और पीपल से है, इसलिए पीपल भी ये कॉपी करके लेके आता है, मतलब सब ले आया करने का मतलब। हाँ इंटरेस्टिंग था ये। अच्छा चलिए एक चीज और दिखाता हूँ, अब इसको मैं एक्सेल में भी ले जा सकता हूँ। डेटा में गए, गेट डेटा में गए, यहाँ पे भी पावर क्वेरी होती है, कंबाइन कहाँ है, हाँ ये अदर, ये ब्लैंक क्वेरी में चले गए, भी एक्सेल में भी पावर क्वेरी है। अब यहाँ पे राइट क्लिक, पेस्ट, वैसे यूआई खुल गया, यहाँ पे भी आ गया ना, देखो पावर बीआई चल रहा है यहाँ पे भी, बट कोने पे वो एक्सेल का निशान बना हुआ है। ये सब बताइए, कैन इट बी पॉसिबल कि जैसे हमारे पास डेव सर्वर में हमारे पास रिपोर्ट है और वो हमें प्रोडक्शन सर्वर में करना कॉपी? हाँ हो जाता है, हो जाएगा वो भी। हाँ, ये अगर नहीं होता ना तो इसका मतलब ये होगा कि एनवायरनमेंट एक दूसरे से काफी दूर हो रहा है। जैसे कई बार होता है ना
कि आपके पास दो सिट्रिक्स होते हैं, एक सिट्रिक्स होता है डेवलपमेंट, एक सिट्रिक्स होता है आपका यूएटी का। दोनों दो अलग अलग कंप्यूटर से कॉपी पेस्ट अलाउ नहीं करता, सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा है यहाँ पे। बस अगर एक ही सिस्टम में है दोनों तो अलाउ करेगा ही करेगा, है ना। या फिर कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बना रखे कि कॉपी पेस्ट कर सकते हो, तो ये आईटी डिसेबल कर देती है। सच बताओ, सिस्टम तो अलाउ कर रहा होता है, आईटी नहीं बंद कर रखा उन चीजों। ठीक है सर, ओके। ये सब दिखाने के लिए था, थोड़ा शो ऑफ करता हूँ बीच बीच में, लेकिन मुझे कितना आता है। ओके, सो दिस इज क्लियर। हमने मूव टू ग्रुप देख लिया, मतलब सिंपल ग्रुप बनाना, फिर कंटेंट को ऊपर नीचे करना, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। आई बिलीव मूव टू, ठीक है। क्रिएट फंक्शन है आपका क्या है? हाँ, ये मैं लास्ट में बताऊंगा आप लोग का। पैरामीटर भी अभी का पार्ट नहीं है, ठीक है। एडवांस एडिटर देख लिया। प्रॉपर्टीज, ज्यादा प्रॉपर्टीज बताने लायक है नहीं वैसे। अगर आप देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या है तो सब बस यही है। लोड रिपोर्ट देख लिया आपने, इंक्लूड रिफ्रेश देख लिया आपने। यहाँ आप टेबल का नाम और उसको डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो देते, और कुछ खास यूसेज नहीं है इसके अंदर, ये तो हम देख ही चुके हैं दोनों। ठीक है, तो प्रॉपर्टी हैज नो यूज, मतलब वैसे नहीं है। फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब तक कोई क्वेश्चन फ्रॉम क्वेरी पे? दिस इज क्वेरी पे। सो यहाँ पे आप जब देख रहे हैं तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं, आपकी प्रेजम्पशन क्या है, क्या सोचते हैं आप जब देखते हैं? तो प्रॉपर्टी का तो नेम है, लाइक नेम ऑफ द टेबल, इसमें कुछ बताने लायक तो है नहीं। मेन है अप्लाइड स्टेप। जब आप इसको देख रहे हो तो आप क्या सोचते हैं, मतलब क्या आता है दिमाग में? सोर्स एज इन क्या? सोर्स मतलब जहाँ से डेटा लिया है, उसके बाद आपने जो जो किया है वो दिखा देता है। ओके, गुड गुड। और कोई थॉट? एक एडिशन पॉइंट और होता है यहाँ पे। सोर्सेस में जैसे फ्रॉम वेयर वी आर एक्सट्रैक्टिंग द डाटा, और उसके बाद हम डाटा को मॉडिफाई कैसे करेंगे, मॉडिफिकेशन सारी इस अप्लाइड स्टेप्स में होगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। सो ये तो हमने बिल्कुल सही बताया। अप्लाइड स्टेप के अंदर आप जो भी टेक्स्ट रिटर्न लिखे हुए देख रहे हैं, ये सिंपली एक एक्शन को डिनोट कर रहे हैं। सोर्स बोले तो सोर्स डेटा ला रहा है, ये नेविगेशन है, ये हेडर्स को प्रमोट करता है, जैसा लिखा है वैसे वैसे कर रहा है। पर एक दो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये आप राइट में गियर आइकन्स देख रहे हैं, सेटिंग आइकन्स, इसका यूज करके आप चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप सोर्स चेंज कर सकते हो, या नेविगेशन या प्रमोटेड हेडर्स को चेंज कर सकते हो, यहाँ पे मर्ज को और एक्सपैंड को चेंज कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा एक और है। जब आप स्टेप देखते हो आपको लगता है ये स्टेप है, मैं कहूँगा स्टेप भी है, पर उसके एडिशन ये टेबल भी है। आपने देखा एक्सपैंडेड पीपल, करेक्ट, पर एक्सपैंडेड पीपल के अंदर क्या है? टेबल ही तो है। ये पूरा टेबल कहाँ है? इस स्टेप के अंदर ही तो है। एक्सपैंडेड जो पीपल का जो स्टेप है, दिस इटसेल्फ कंटेन्स अ टेबल। जिस टेबल के अंदर इतने सारे कॉलम है, इन एडिशन टू दैट हमारे पास पर्सन का भी कॉलम है, और जो कॉलम हमारा, जैसे मैं एक स्टेप पीछे जाऊंगा ये कॉलम यहाँ से गायब हो जाता है। पीपल आ गया और जाता हूँ पीछे, कॉलम गायब हो गया, कॉलम नहीं है यहाँ पे। तो हर एक स्टेप अपने आप में टेबल कंटेन करता है। ये भी एक टेबल कंटेन करता है, ये भी करता है, ये भी करता है ना? सेंस कर रहा है? अगर आपको क्लिक नहीं करता तो मैं आपको जैसे यहाँ पे टूल बार, टेबल, फॉर्मूला बार में देखो, ये फंक्शन लिखा हुआ है इधर। मैं एक्सेल पे ले जाता हूँ, यहाँ डाला। फंक्शन का नाम है टेबल डॉट एक्सपैंड टेबल कॉलम्स। इसका ये पूरा पूरा सिंटेक्स लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इसके बारे में अगर मुझे जानना हो कि ये फंक्शन क्या करता है, इसकी यूसेज क्या है, अगर मेरे को अगर कभी यूज करना पड़े तो मैं कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, चलिए ठीक है, छोटे से एग्जाम्पल से देखते हैं। मैं पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं आपको यूसेज दिखाता हूँ इसकी। ये कॉपी करो, यहाँ पे राइट क्लिक, इसे एक छोटा सा यूसेज भी दिखा दूंगा। एक ब्लैंक क्वेरी कॉपी करी, यहाँ इक्वल टू डालो और उस फंक्शन को डाल के एंटर मार दो, बस पूरा प्रीव्यू आ जाएगा उस फंक्शन का। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल समझाया हुआ है, और यहाँ पे सिंटेक्स भी है आपके पास। कहाँ गया भाई? ये पैरामीटर्स हो गए, सिंटेक्स कहाँ है भाई? ये रहा, सॉरी, ये फंक्शन है। सिंटेक्स में पहले ये बोलता है टेबल दो, पहले तो जी क्या दो? टेबल, फिर कॉलम दो, एज अ टेक्स्ट दो। तो जब टेबल मांग रहा है और यहाँ पे इसने क्या दिया, इसने ये वाले स्टेप पे क्या दिया? व्हाट इज दिस?
ये टेबल ही तो है, सेंस किया कुछ? तो यहाँ पे एक ऐसा आर्ग्यूमेंट जो ये मांगेगा आपको देना पड़ेगा, तभी रिजल्ट देगा ये। अगर आप इसको टेबल नहीं देंगे तो ये आउटपुट थोड़ा देगा। सो ये वाले स्टेप पे यही हो रहा है। ये जो है मर्ज क्वेरी, दिस इज द नेम ऑफ द टेबल। ये कहाँ है टेबल? ये रही ऊपर मर्ज क्वेरी, ये रहा। दिस इज द नेम ऑफ द टेबल, मर्ज क्वेरी। अब इस वाले टेबल पे जो ये फंक्शन बन रहा है, ये बन रहा है टेबल डॉट नेस्टेड ज्वाइन, जिसमें पहला आर्ग्यूमेंट क्या है? टेबल का नाम क्या है? चेंज्ड टाइप। दिस इज द नेम ऑफ द टेबल। ये टेबल कहाँ पे है? एग्जैक्ट इसके ऊपर, चेंज टाइप। इसके अंदर भी वही हो रहा है, प्रमोटेड हेडर्स। क्या है ये? टेबल का नाम। कहाँ है ये? एग्जैक्ट उसके ऊपर। ये थोड़ा सा अलग है, ये नेविगेशन की वजह से होता है। नेविगेशन आप डायरेक्टली नेविगेशन नहीं लिख सकते, उसके अंदर जो ऑर्डर शीट होती है वो, मतलब ये काइंड ऑफ एलियास है नेविगेशन का। ये थोड़ा सा अलग है, पर स्टिल ये ही टेबल है। ठीक है गाइस, समझ में आ गया स्टेप को कैसे देखना होता है? ओके, अभी ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं आपको एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन कराऊंगा तो मैं यूआई तो करता हूँ टच, और ये भी टच करूंगा। मतलब ऐसे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगा, कहोगे यार ये कैसे कैसे कर दिए। उन ट्रांसफॉर्मेशन में जरूरत पड़ती है, आपको स्टेप मैनिपुलेशन करनी पड़ती है। आप सिर्फ यूआई से काम नहीं चला सकते। तो एक क्वेश्चन है बस, एक बार मैंने मिस कर दी थी बीच में। जब सोर्स पे जाते हैं तो जो कैनवास के बीच में, ये सॉरी कैनवास कह रहा हूँ, डिजाइन व्यू में बीच में आते, एक बार सोर्स पे भी जाना। हाँ जी, हाँ, सोर्स में ये जो है ना, सेकंड नेम के बाद डेटा, आइटम, काइंड और हिडन, ये एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। और ये क्या कॉलम, मतलब कॉलमनर फॉर्मेट होता है, इसी को बोलते हैं कॉलमनर फॉर्मेट, या क्या होता है? एक्सेल या जो भी फ्लैट फाइल्स उठाते हो उनके साथ होता है ऐसा। ऐसे नहीं, ये नॉर्मली मेरे कनेक्शन स्ट्रिंग बन चुका है जहाँ पे वर्कबुक ले रखी है एक्सेल। अगर आप नेविगेशन में जाओगे तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? टेबल 1 2 3 देख रहे हो, फिर ये भी देख रहे हो। अगर आप इस आइकन को थोड़ा गौर से देखें और थोड़ा सा डिफरेंस पाएंगे। ये देखिए, टेबल 1 2 3 आई, फिर ये अलग से क्यों आया? अगर मैं आपको ये फाइल दिखाऊं, यस, अगर आप फाइल में देखेंगे तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4 शीट्स है बस, और मेरे पे कुछ है ही नहीं। राइट क्लिक करूंगा तो भी मेरे पे कुछ नहीं है। जब मेरे पे 4 शीट है यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा 3 टेबल कहाँ से आ रही है? ये कंसर्न हो जाता है। ये कहाँ से आ रही है अब बताते हैं। ये आइकन टेबल का है, और बॉटम में अगर ये आइकन आप देखते हैं, दिस इज द आइकन ऑफ द शीट। हमारे पास सिर्फ 4 शीट्स थी और 3 टेबल कहाँ से आ गए? क्वेश्चन ये था। एक्सेल से जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसमें सारे ऑब्जेक्ट उठा लेता है, सारे ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। 4 शीट ऑब्जेक्ट है, बट अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यू सी अ टेबल डिजाइन, मतलब टेबल भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है। तो टेबल 3 यहाँ से आया, यहाँ पे कोई टेबल यहाँ पे टेबल है, टेबल 2 यहाँ से आया, बजट पे गए। अब बजट पे आप देखोगे टेबल डिजाइन नहीं आ रहा, मतलब ये मेरी टेबल नहीं है, ये जस्ट एक डेटा है। रिप्रेजेंटेशन पे मत जाना बस। ऑर्डर्स पे आए, टेबल पे क्लिक किया, टेबल डिजाइन एक्टिव हो गया, टेबल 1 यहाँ से आया। समझ में? ये सब एक्सेल में होता है। लाइक टेबल और शीट वगैरह कॉन्सेप्ट कहाँ पे है? एक्सेल में ही तो है। ओके, पर डेटा तो टेबुलर फॉर्मेट में ही स्टोर होता है ना, डेटाबेस में भी। हाँ, पर शीट्स के फॉर्म में नहीं होता। अच्छा, राइट, वो शीट्स के फॉर्म में नहीं होता। हाँ, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ तो ये नहीं आया, यहाँ पे टेबल नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ? इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल नेम दे देता हूँ, टेबल नेम दे देता हूँ, लाइक बजट अंडरस्कोर नेम। अब ये मेरा डिफाइंड नेम हो गया, यहाँ पे एक नेम आएगा, डिफाइंड नेम। अब हम यहाँ पे आए, अभी नेविगेशन पे जाता हूँ, ये रन कर रहा है, सॉरी, अभी तक 3 और 4, ठीक है। यहाँ पे आए, सेव तो किया ना उसको, कंट्रोल एस, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, रन कर रहा है। यहाँ पे गए,
बजट नेम, ऑब्जेक्ट पिक करते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सर ये बजट नेम के आगे आइकन अब दूसरा आ रहा है, एक बार अगर ये हमें क्योंकि इसको डिफाइंड थोड़ा, नेम का है, डिफाइंड नेम का है। अच्छा ये आइकन ही दूसरा है डिफाइंड नेम का। यस, ये ऑब्जेक्ट पकड़ता है, ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया ना, ऑब्जेक्ट। ठीक है ठीक है, हर शीट पे एक ऑब्जेक्ट पकड़ता है। तो जैसे कि ये इसलिए यहाँ पे बजट नेम का ऑब्जेक्ट आ गया इस वजह से। ओके तो काइंड अगर आप देखो, काइंड इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे पहले 4 आप शीट देखते हो, एक्चुअल में एक्सेल की शीट्स हैं ये। लास्ट के जो 3 देख रहे हो आप, 4, 5, 6, ये टेबल के नेम है, टेबल डिजाइन है, राइट। और बॉटम में जो आप देख रहे हो, बजट नेम, दिस इज द नेम ऑफ द डिफाइंड कॉलम। जो एक रेंज होती है ना, उसको अलग से नाम दिया है, वो उठाया। अब कहोगे ये क्या है भाई, बिल्कुल, एक्सेल में ये फिल्टर तो बता दो डेटाबेस। ये क्या है। ये इसलिए आ रही है, ये एक्चुअली टेम्पररी फाइल है। ये इंडिकेट कर रही है कि आप अभी इसको यूज कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम पावर बीआई, और ये हिडन नहीं है, हिडन है, सॉरी, हिडन लेसन, मतलब ये दिख नहीं रही है आपको एक्सेल के अंदर। अगर आप देखो एक्सेल में आपको दिखेगी नहीं अगर ढूंढोगे तो, पर ये ऐसा कैश मेमोरी सेव हो गई है, और ये इंडिकेट कर रही है कि आप अभी इस ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हो।